Yes, so since my few new people have joined today, and this recording, many have requested me for the recording also that because of their certain work commitments and people from abroad also, since the time zones are not matching. So a bit of introduction about myself. So I stay in Mumbai. I'm 40 years old, and as a child, I had few autoimmune conditions. I had ankylosing spondylitis. I had Crohn's disease, autoimmune hemolytic anemia. I had a zero sperm count, and what doctors used to say me that all these are not curable. There is no cure for it, and I have to live with medicines for the rest of my life. So when I was 24, I was very dejected, and I was taking 4 painkillers a day, apart from several other anti-inflammatory medications, just to like stay alive, just to walk. इतने मेरा हालत खराब था, and and I changed my diet lifestyle through the Yoga Institute Santa Cruz. So Yoga Institute came as a blessing in my life, and they taught me another way of living. What Somji was just saying, that you get to learn a new way of living life, not only your diet, not only lifestyle, but your thoughts, your perceptions. And when I changed myself, when I started working on myself to the root cause of the disease, I found out that my all the medications, 6 महीने में सब बंद हो गए सारे medications. And for the last 16 years now, I have not taken any medication for my all the autoimmune conditions. तो when I got, मेरे को इतना जब अच्छा लगा, तो I got inspired and started teaching in 2014. तो पहले one on one classes लेता था. I used to teach people. I used to primarily teach people with ankylosing spondylitis, and then gradually people with diabetes start coming. People with hypertension started coming. अलग अलग बीमारियों के लोग आने लगे, and COVID came as a blessing in the way that I started group classes. ग्रुप क्लासेस में एक जन आए, दो जन आए, and धीरे धीरे the word started spreading. So I normally don't believe that only exercise is important, only diet is important. So what I teach, तो मैंने अपना एक institute open किया. Now it's called the Institute of Holistic Abundance, wherein I teach people how to live life. What Somji exactly rightly said, that you need to learn a new way of thinking, a new way of living. It's not that हमें कोई बीमारी हो गई तो we give all away our power to the doctor, और वी आर सोली डिपेंडेंट ऑन दैट मेडिसिन. हम कोई दवाई पे डिपेंडेंट होते हैं. तो बिलीव मी, देर इज नो मैजिक पिल इन दिस वर्ल्ड दैट कैन ट्रीट यू, अनलेस यू टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स. हम जब तक चीजें अपने हाथ में नहीं लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. बिकॉज कहीं ना कहीं वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर सेशन. बिकॉज ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ सर्टन सेल्स. ओके, सो कोई बोलता है 40 ट्रिलियन सेल्स है, कोई बोलता है 75 ट्रिलियन सेल्स है. फिगर डजंट मैटर, बट देर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन अवर बॉडीज. एंड गुड पॉइंट इज दैट इट इज अ सेल्फ रीजेनरेटिव सेल्स. सो आपके सेल्स हमेशा रीजेनरेट होते हैं. तो पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं. ओके, सो इफ योर बॉडी इज अ cellular regeneration mechanism, so it's up to us what we feed our cells. हम अपने सेल्स को क्या खिला रहे हैं, हमारे ऊपर है. तो जब मैं बीमार था, मेरे सेल्स में भी डैमेज थे, एंड मैंने जब सही खाना चालू किया, सही सोच रखी, रेगुलर एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, वॉट एवर आई डिड विथ माई सेल्फ, ऑटोमेटिकली मेरे जो नए सेल्स हैं, देवर हेल्दी सेल्स, एंड माई हीलिंग हैपेंड. So this is the crux of entire like self healing mechanism. I'm running a program right now with my students, which is called activating your inner pharmacy. Ki we all have that within us. We all have an inner pharmacy within us. We just need to activate it. So I finished 3 chapters of that of the book that I'm writing. मैं ले रहा हूँ मेरी classes में in the healthy body balanced mind classes. I'm taking those sessions, and it's going very beautifully. Actually, people are healing themselves. They're coming out of depression, diabetes, hypertension, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड. जो बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग यू हैव टू मेडिकेशंस, पीपल हैव स्टॉप थायराइड मेडिकेशंस, दे आर थ्राइविंग. सो वी हैव टू फर्स्ट बिलीव, हमें पहले विश्वास रखना पड़ेगा दैट यस, माय बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म. बट हमारी ड्यूटी क्या है? व्हाट्स आवर ड्यूटी? कौन मेरा स्टूडेंट बताएगा व्हाट वी हैव टू डू? एनीबडी कैन से, एनीबडी कैन अनम्यूट. व्हाट्स आवर ड्यूटी? Yesterday, what I had learned was Yeah. live in the moment. Yes, but you have actually, you have not attended the course. I'm asking for a Yeah, specific I'm sorry. answer. Yeah, Okay. Pooja, no Also, problem, no problem. like we need to believe in it that our body is a No, self-healing. वो तो है, बिलीव तो कर लिया, बट वी नीड टू प्रोवाइड इट द राइट एनवायरमेंट टू Right. हील. यस. तो माई बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, पर मैं अगर सब कुछ गलत करूंगा तो क्या वो हील करेगा? नो. मुझे उसको राइट एनवायरमेंट देना हील करने के लिए. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडे सेशन, दैट यस, मे बी यू हैव कैंसर, मे बी यू डोंट वांट कैंसर, मे बी यू हैव एनी अदर डिजीज. अगर if you provide the body the right environment, your mind the right environment, if you have the right perception in life, automatically you can heal yourself.
So first a disclaimer. So if you are having any disease, please don't stop your medication on your own. We have done something wrong with us. हमने गलत खाना खाया, एक्सरसाइज नहीं किया, सही समय पे नहीं सोए, उसका नतीजा है कि आपको आज मेडिसिन जरूरी है. It's not that मैंने मेडिसिन नहीं ली. I also took medications. I also went to a doctor. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स गलत हैं. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग कि हम पूरा चीज अपने हाथ में ले लेना. बट यस, along with medications, what we can do, we will learn today. Okay, so now why cancer? Why I selected cancer? So I'm doing a course from Cornell University right now. It's a 6-month course, and cancer was the last module. So cancer मेरा आना चाहिए था, actually June July में आना चाहिए था, but I selected cancer first, and teachers were surprised that such a difficult topic, which was to be covered last, why did you took it first? So the reason behind it is I'm being selfish. I'm being selfish. Why selfish? Because my own mother, she's in the session right now, and she was diagnosed with breast cancer in March 2022. She was devastated with, obviously, she was devastated with the diagnosis. We got the this thing surgery done, surgery ho gayi unki, and surgery me we found out that she's having triple negative breast cancer. What is triple negative? So I won't go into details. So it is the most aggressive form, which has the tendency to spread fast. And being a patient of liver cirrhosis, she could not be administered chemotherapy or radiation. Radiation फिर भी डॉक्टर ने चांस लेके दे दिया. No oral medications, biologics जो अलग अलग नई नई दवाई आई है, she couldn't take it, and doctor told that you don't know what may happen. Things, months passed, 6 महीने pass हो गए, and again unfortunately in September 2022 her cancer relapsed. एंड जो हमें सबसे बड़ा डर था रिलैप्स होने का, डॉक्टर टोल्ड दैट नॉर्मली 5 साल के अंदर रिलैप्स नहीं होता, इनका तो 6 महीने में रिलैप्स हो गया. We again got the surgery done, again the same diagnosis, again back to square one. Doctor told that I don't know, Manish, what will happen, whether she will live 1 month, 6 months, 20 years, 5 years. So better, whatever her last wishes are, you start fulfilling them. Just imagine a son sitting in front of a doctor. I was alone that time, and doctor telling you this. And ठीक है, through yoga I've understood that nothing is permanent, not even my mother, not even I'm permanent. But as a son, being a teacher myself for the last 15 years, having belief in this cellular regeneration mechanism, I started my own research. I told I have two options now. मैं गिव अप कर सकता हूँ पूरा कि मेरी मदर को कैंसर है, उनका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज. और सेकंड ऑप्शन वाज टेक थिंग्स इन माय ओन हैंड्स. आई एम नॉट टेलिंग दिस आउट ऑफ ईगो कि मैंने चीजें अपने हाथ में ली. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द नेट कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, उसने अपने आप को ठीक किया. एंड वन आफ्टर अनदर, बोलते ना किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है. आई रियली वांटेड, देयर वाज अ बर्निंग डिजायर विद इन मी दैट माय मदर इज नॉट दैट ओल्ड. I believe that she is able to walk, talk, everything she is able to do. There are certain cells in her body which are not behaving correctly. मुझे खाली उन cells को address करना है, बस that's it. So when I started looking at not as a problem, but when I started looking for solutions, so one after another, people started coming to my life through YouTube, through net, through research from US. I spoke to doctors there, certain integrative medicine doctors, that how do you treat cancer at your center? तो मुझे सर्टन तरीके मालूम पड़े कैसे वो ट्रीट करते हैं, नहीं करते हैं. एंड शरण इंडिया मेरी लाइफ में आया. शरण इंडिया, इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंडरफुल पीपल. वी टू कंसल्टेशन फ्रॉम शरण ऑल्सो. सो देर इज अ डॉक्टर एट शरण, consultant at Sharan, Sharmila, Jayashri Kannan. This Jayashri Kannan, we consulted her. She herself is a cancer survivor. She had cervical cancer. She also had a relapse in 2008. And for the last 16 years, उनका कैंसर वापस नहीं आया. हमने उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया. शी टॉट अस अबाउट अ डाइट. हमने वो डाइट स्टार्ट किया. साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर माइंडसेट. शी बिकेम माई स्टूडेंट. तो मैं क्लासेस लेता था मॉर्निंग में आ नहीं सकते थे उनके लिए. स्पेसिफिकली आई यूज्ड टू टेक इवनिंग क्लासेस सो दैट आई कैन कन्वे माई मैसेज टू हर एज अ टीचर एंड स्टूडेंट. एंड थैंकफुली for the past, it's been 18 months now, and her cancer hasn't relapsed. Doctors are Wonderful. surprised. Doctors are surprised. शी इज इनफैक्ट बिकमिंग यंगर. तो जो उनको देखा था 1.5 साल पहले, एंड जो उनको अब देखता है तो चेहरे से झुर्रियां चले गई उनकी. शी इज एबल टू वॉक 3,000 to 4,000 स्टेप्स. पहले उनको वर्टाइगो था, वॉक नहीं कर सकते थे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज हर बॉडी इज हीलिंग फ्रॉम विद इन. ऑल हर बायोमार्कर्स आर नॉर्मल. जो बायोमार्कर्स, कैंसर के बायोमार्कर्स होते हैं, ऑल हर ब्लड टेस्ट, ऑल हर लिवर एंजाइम्स, एवरीथिंग आर कमिंग नॉर्मल.
तो आई थॉट व्हाई नॉट लाइक, पर मैं सबको बोलता था तो विश्वास नहीं होता था. नाउ आई एम टेकिंग अ डिग्री फ्रॉम कर्नेल, तो नाउ देयर इज मोर वेट टू व्हाट आई से. सो मैंने बोला क्यों ना गो वन स्टेप अहेड एंड मेक अ प्रोग्राम फॉर एवरीवन. कि आज मैं आपको एक स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत. ये मैं क्लैपिंग रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो देख लीजिए. नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट फॉर यू. लीव इट, नो प्रॉब्लम. या सो आई गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्ट्स. हम कुछ फैक्ट्स से स्टार्ट करना चाहेंगे बिकॉज हमें पता होना चाहिए देश में क्या हो रहा है. हम क्या करते हैं, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सो एक छोटा सा क्लिप है, ये इंडिया टुडे ग्रुप का है ये क्लिप. दिस विल बी एन आई ओपनर फॉर एवरी वन ऑफ अस. देयर विल की इंडिया में आज क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू यूएस, आई एम नॉट गोइंग टू एनी अदर कंट्री. सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वीडियो नाउ. अगर साउंड नहीं आए तो somebody let me know. थोड़ा ब्रेक होगा तो प्लीज मैनेज इट बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम हॉटस्पॉट कनेक्शन टुडे. So I'm going to play a video. India saw 8 lakh deaths in 2022, all due to cancer. But what is even more alarming is 14 lakh Indians suffered from cancer in 2022, and the numbers are only increasing. The country's cancer burden is projected to grow over 15 lakh cases by 2025. The estimated mortality rate was around 7 lakh in 2020, and it increased to over 8 lakh in 2022. Deaths due to cancer have remained among the top 5 causes of deaths in India. According to oncologists, increasing consumption of packaged food with harmful preservatives and junk food could be contributory factors. In India, tobacco-related cancers accounted for 27% of the country's cancer burden in 2020. Now, recently, the Parliamentary Standing Committee on Health urged the government to raise tobacco taxes and enact a national-level gutka ban substantially. It has also recommended that the government abolish all designated smoking areas in restaurants, airports, and hotels to discourage tobacco use. A parliamentary panel has also asked the centre to provide free cancer treatment to middle-class households through a government-funded health insurance scheme and to cap cancer diagnostics and treatment services. The panel has noted that India has only 1.5 radiation oncologists per million population compared to 20 radiation oncologists per million in the US. The Committee on Health has also urged to take steps to strengthen radiotherapy facilities in the country, noting that the high cost of radiotherapy in the private sector is mainly because machines are imported. So what did you pick up from this? आपने क्या सीखा कि मैंने जो वीडियो दिखाया? What is the main reason? उन्होंने सबसे पहले बता दिया था, बट उन्होंने सॉल्यूशन सिर्फ टबैको का बताया, स्मोकिंग का बताया. What was the main reason? Did Junk anybody pay food. attention? Junk food. पैकेज फूड. Packaged food, junk food. Yes. What is the main reason? जो रिपोर्टर ने बहुत rightly point out किया. Yes. तो now my question to you is, उसने क्या बोला लास्ट में? गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस ऑन सिगरेट्स. जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग लाउंजेस होते हैं एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, उनको बंद कर देना चाहिए. एंड दे शुड लाइक इंप्रूव द मेडिकल सिस्टम बिकॉज देयर ओनली 1.5 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इन इंडिया पर मिलियन. मतलब 10 लाख लोगों के पीछे एक ही है, मतलब मोटा मोटी एक ही डॉक्टर है खाली. तो सब कुछ तो बोल दिया, बट डिड दे टॉक अबाउट जंक फूड? Why not increase taxes on junk food, on the pizzas and the burgers of the world and the pani puris and the bhujiyas of the world, which is like making people ill? 8 lakh deaths happened in 2020 only due to 2021 due to cancer. मतलब अभी हम बात कर रहे हैं ना, हर 3 सेकंड में एक बंदा जा रहा है कैंसर से. 2022 में एक पैंडेमिक आया था. 2020 में, which was a pandemic? What was the name of the pandemic that happened in COVID? कितना बड़ा हल्ला हुआ, कोविड आया, कोविड आया, कोविड आया. कोविड में कितनी जाने गई मालूम है किसको? 2021 में इंडिया में कितनी जाने गई? एनी आइडिया? एनीवन? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख डेथ्स हैपेंड. अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल फिगर्स फॉर 4 lakhs. एंड कैंसर से कितनी जाने गई? 9 lakhs. In 2021, 9 lakhs suffered from cancer, passed away due to cancer. So which is a bigger pandemic? Is COVID is a bigger pandemic or cancer is a bigger pandemic? The figures for heart disease are even higher. Huh? Figures for heart disease are even higher. तो जो दो बड़े कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में, वन इज हार्ट डिजीज एंड वन इज कैंसर. सैडली बोथ आर प्रिवेंटेबल. हम देखेंगे आगे कितने परसेंट क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्रिवेंट करने के लिए. बट इफ यू डू व्हाट आई टीच यू टुडे, सो देयर आर लाइक more than 40% chances that you will not have these two diseases for the rest of your life. Isn't it worth it listening to this session? So I want your 100% focus. मोबाइल को आप एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए अगर आपका
हॉटस्पॉट से कनेक्टेड नहीं है, बी 200% फोकस्ड ऑन दिस प्रेजेंटेशन। बहुत मैंने दिल से बनाया है, बहुत जुनून से बनाया है। दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर मी, ये एक मेरे लिए नशा है, दिस इज फॉर नशा फॉर मी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन नाउ एंड आई विल स्विच बिटवीन टू प्रेजेंटेशन। मेरा दो प्रेजेंटेशन है, so I'll keep switching. It will not be in a linear presentation की एक लाइन में चलते रहेगा. And can you look at the screen now? Everyone, let me know. Anyone? Screen देख पा रहे हैं? Yeah. So this is the presentation I have made. It's called, I've named it the Cancer Prevention Masterclass. So I want to give a hope to everyone that yes, cancer is not something to be afraid of. We should not run, डरना नहीं उस word से हमें, हम उसको prevent कर सकते हैं. And I'm doing a course from Cornell University. So it is based on the program of a healthy living and nutrition certificate program. And this is my own startup, जिसको मैंने खाली फैंसी से नाम दे दिया है. मैं काम 11 साल से कर रहा हूँ. इट्स कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक गवर्नेंस, वेयर आई टीच पीपल थ्रू माय क्लासेस हाउ टू लिव हैप्पीली, वेयर इन मोड इज योगा, योग सूत्रस, वेदांत टेक्स्ट, भगवद गीता एंड मॉडर्न सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक्स. सो दिस इज द प्रोग्राम दैट आई हैव मेड. सो दिस इज द, मैंने फैक्ट बताया आपको, दैट हार्ट डिजीज एंड कैंसर are the two leading causes of death. This is from the United States and both are preventable. सबसे हमें पहले समझना कैंसर होता किस कारण से. ये आप जो देख रहे हैं सामने, फिर अभी आप दिस पाई चार्ट दैट यू आर लुकिंग एट, तो लुक एट द येलो वन. येलो वन रिप्रेजेंट डाइट. तो ये भी यूएस की एक साइट का था, फ्रॉम आई गॉट फ्रॉम द यूएस वेबसाइट, दैट 35% डाइट इज रिस्पॉन्सिबल एंड 30 इज टोबैको, 10% इज सनलाइट. तो हम इसको ऐड कर दे तो कितना हो गया? 30, 35 एंड 10, इट कम्स टू 75. तो अगर 75% हमारे हाथों में, वी कैन कंट्रोल व्हाट वी ईट. टबैको तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई लेता, अगर लेता है तो इट इज स्टूपिड टू ईट दोस गुटखा, इट इज स्टूपिड टू स्मोक, इट इज स्टूपिड टू ड्रिंक अल्कोहल. प्योर स्टूपिडिटी. अगर आप ये तीन चीज अपनी लाइफ में ले रहे हैं, गुटखा, तंबाकू, तो एक तरह से आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं अपने माउथ से. यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. सो स्टॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके हाथ में. आई वोंट प्रीच योर एनीथिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. वी आर मैच्योर इनफ कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. एंड राइट में आप देखिए एक पॉजिटिव आंकड़ा नाउ, दैट 4 in 10 कैंसर केसेस कैन बी प्रिवेंटेड. दिस इज फ्रॉम कैंसर रिसर्च यूके. इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर. एंड उसमें उन्होंने राइट में कारण सब लिखा है कि आपको क्या क्या करना है, जो मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी डिटेल में बताऊंगा मैं. तो बोलते ना, एक होप बहुत जरूरी है इंसान को लाइफ में जीने के लिए. फेथ होना चाहिए कि हम आज, हमारी लाइफ हमारे हाथ में. किसी को कैंसर चाहिए? डज एनीबडी वांट्स कैंसर इन देयर लाइफ? किसी को चाहिए? नोबडी वांट्स दैट. उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग है कैंसर क्या होता है. ओके, मेरे पास एक है, पर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कैंसर क्या होता है. तो जैसे सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर सेल्स का बना हुआ होता है. एंड जब वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, एंड डैमेज होकर जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो गार्ड बन जाती है, जो ट्यूमर बोलते हैं. दैट इज नथिंग बट कैंसर. तो किसी को, वुमन को ब्रेस्ट में होता है, मेन को प्रोस्टेट में होता है, कोलोन में होता है, ईसोफेगस में होता है, ब्रेन में हो जाता है, लिवर में हो जाता है. अलग अलग जगह में कैंसर होने के रिस्क होते हैं. तो मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है. क्या सुनना है पहले आपको? वेदर यू वांट गुड न्यूज और बैड न्यूज? गुड. अच्छा, एवरीबॉडी सेइंग गुड. एवरीबॉडी इज टेलिंग गुड न्यूज. गुड न्यूज. तो गुड न्यूज ये है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं. आपको अगर कैंसर हो भी गया हो, you have certain mechanism within you which can heal you. And the bad news is that बचपन से हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, बट वो डॉर्मेंट है. दोस कैंसर सेल्स है डॉर्मेंट. तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, जितनी मेहनत से बनाया, दिखा भी देता हूँ. तो आपको नहीं समझे तो प्लीज डोंट वरी, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ. ओके, इट्स अ बिट टेक्निकल लैंग्वेज, पर आपको जानकारी होनी चाहिए. तो हमारे जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं. ओके, तो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, बहुत फैंसी सा नाम है, डोंट गो आफ्टर द नेम, पर इतना समझिए, दो तरह के जीन्स होते हैं. उसको बोलते हैं प्रोटोऑकोजीन्स, एंड दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन्स. यू कैन टेक अ फोटोग्राफी इफ यू वांट. तो हमारे सेल्स जो होते हैं, उसके अंदर दो जीन्स, आई रिपीट, प्रोटोऑकोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन्स. तो मेरे को जब मेरे प्रोफेसर ने समझाया, मुझे कुछ नहीं समझा. मैंने बोला आई डोंट हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या गया, अब इसको देखिए आप. ये समझ रहा है, ये हमारा एक नॉर्मल जीन है. ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ना, ब्रेक इज द ट्यूमर सप्रेशन जीन, जो मैंने आपको पहले बताया ना. हमारे बॉडी में सेल्स में एक ब्रेक होता है, जैसे गाड़ी में होता है ना, एक ब्रेक, एक एक्सेलरेटर. वैसे हमारे जीन्स के अंदर, जो सेल्स के अंदर भी एक ब्रेक होता है और एक एक्सेलरेटर होता है. तो एक्सेलरेटर हो गया जो हमने पहले पढ़ा,
कौन सा? प्रोटोऑन्कोजीन है ना, प्रोटोऑन्कोजीन, दैट इज द एक्सेलरेटर. And break is the tumor suppression gene. This is a normal gene. Okay, जो हम पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं, most of us fortunately have, हमारा सेल्स एकदम नॉर्मल होता है कि ब्रेक हमेशा लगा हुआ होता है एंड एक्सीलरेटर आराम आराम करता है, एक्सीलरेटर को प्रेस नहीं करता है. तो बट हम क्या करते हैं बचपन से, हम जो भी खाना खा रहे हैं एनवायरमेंट के थ्रू या थॉट्स के थ्रू या मेनी फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हम सीखेंगे, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, हम रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर डालते रहते हैं जो धीरे 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 एक्सीलरेटर को दबाते रहते हैं एंड धीरे 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 ब्रेक से पैर हमारा हटते जाता है. तो आज हमें खाली यही सीखना है कि कौन सी चीजें हमें ऐसी करनी है जिससे हमारा एक्सीलरेटर वैसा का वैसा रहे, आगे नहीं बढ़े, और ब्रेक हमेशा लगा रहना चाहिए. जो कैंसर सेल को बढ़ाता है ना, ब्रेक हमेशा लगा रहना चाहिए. तो सपोज आपने सब कुछ गलत किया, आप गलत खाने लगे, आप फ्राइड फूड खाने लगे, जो हम सीखेंगे, काफी कुछ सीखेंगे, तो उससे क्या होगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो अब कैंसर का सेल कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया, जीन्स कैसे होते हैं. अब राइट में आप देखेंगे कैंसर के जीन्स कैसे होते हैं. दीज आर म्यूटेटेड जीन्स जो कैंसर में तो उसका ब्रेक क्या हुआ है, कैन एनीबॉडी सी ब्रेक क्या हो गया? एनीबॉडी कैन टेल मी, एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड से. टूट गया. ब्रेक टूट गया, ब्रेक गायब ही हो गया, टूटने गायब ही हो गया पूरा. एंड एक्सीलरेटर क्या हुआ? एक्सीलरेटर इज इन फुल फ्लेज्ड मोड में आ गया पूरा. आपकी गाड़ी पूरी 5th गियर में भाग रही है, कैंसर सेल्स फैलते जा रहे हैं. ये हो रहा है हमारे सेल्स के साथ. व्हेन योर नॉर्मल सेल्स म्यूटेट मतलब उसकी परिभाषा बदल गई, रंग रूप उसका बदल गया. मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं फॉर अ कॉमन हाउस होल्डर. कैंसर क्या होता है बहुत जरूरी है पहले समझना, व्हाट इज दैट, तभी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ना. कि आप खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ अपने अंदर डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेल्स कैसे उसको रिसीव करते हैं, नहीं करते हैं. क्लियर? एनी डाउट्स प्लीज यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी, बिकॉज ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? व्हाट आर सेल्स? सेल्स के अंदर दो तरह के जीन होते हैं. वन इज प्रोटोऑन्कोजीन विच इज द एक्सेलरेटर, वन इज द ट्यूमर सप्रेशन जीन विच इज द ब्रेक. भगवान ने ब्रेक लगा के भेजा है, एक्सीलरेटर से पैर हटा के रखा है. हमारे ऊपर है कि हमें एक्सीलरेटर को प्रेस करना है कि नहीं करना है, ब्रेक से पैर, ब्रेक को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, सब हमारे हाथों में है. सो दिस इज नथिंग बट हाउ, व्हाट इज कैंसर नाउ, कैसे होता है हमें वो देखना है. मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है. तो नेक्स्ट लुक एट दिस. तो लेफ्ट में हम देख रहे हैं ये प्रोटोऑन्कोजीन जो जीन होता है, ये हमारे सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो हम लेफ्ट में देख रहे हैं. दिस इज अ नॉर्मल सेल डिविजन, दिस इज नॉट एबनॉर्मल. पर राइट में आप जो देख रहे हैं, जब प्रोटोऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, राइट में आप देख रहे हैं, तब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है. अनकंट्रोल्ड इज द मेन वर्ड हियर. देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन सबका होता है, जिन जो पुराने सेल्स मरते हैं, नए पैदा होते हैं, वो हमेशा होता है. बट जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब वो पूरा स्टेरॉइड्स पे आ जाता है कि पूरा चलो भागो, तब जाके हमें ट्यूमर ग्रोथ होता है, विच टर्न इनटू मैलिग्नेंसी एंड विच इज कॉल्ड एज कैंसर. सो बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया है कि व्हाट इज द, आपके शरीर में क्या हो रहा है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी विच डॉक्टर सेज दैट आपको कैंसर का डायग्नोसिस हो गया. तो अगर कैंसर इज रिलेटेड टू सेल्स, सो अगर आपको कैंसर की हीलिंग करनी तो किसको आपको ठीक करना है लॉजिकली? व्हाट डू यू हैव टू रिपेयर? सेल्स. सुपर्ब. मतलब यू आर विथ मी. अगर आपको ये बात समझ गई, यू आर विथ मी. तो पहली बात, अगर किसी को कैंसर आपके फैमिली में हो गया है या आपके घर में किसी को हो गया है, पड़ोसी में किसी को हो गया, रिलेशन में, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं. इट्स कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस. मेरी मदर को देखिए, और भी कई केसेस हम रोज देखते हैं, मिरेकल केसेस होते हैं. डॉक्टर बोल देता है 6 महीना नहीं जिएंगे और 20 साल तक बंदा जीता है, उसको कुछ नहीं होता है. तो नाउ माय इंटेंशन टुडे इज नॉट टू हॉरिफाई यू, नॉट टू, बट टू एम्पावर यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी अभी 25-30 लोग यहाँ पर हैं, हम, आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि आप जो आज सीख रहे हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में. अदरवाइज ये खाली एक लेक्चर बन के रह जाएगा. ओके, सो कर रहे हैं अपने आप को, मुझे नहीं, अपने आप को एक प्रॉमिस करिए आज कि नेक्स्ट 40 मिनट्स, यस डेफिनेटली, ये शबीना जी सेइंग डेफिनेटली यस, दैट यस, मेरी लाइफ मेरे हाथ में. आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन बुक. हर पन्ना में लिखता हूं, हर बाइट जो मैं लेता हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, दिस इज अ कोट फ्रॉम मी ओनली, जो मुझे एक बार ख्याल आया था. तो बैठे बैठे कभी कभी ख्याल आते हैं सुबह सुबह 4 बजे. So I'm just going to share another presentation. Look at this. What is this guy doing? ये बंदा क्या कर रहा है? Anybody can try? गड्ढा खोद रहा है, बराबर है. किसके लिए गड्ढा खोद रहा है?
अपने कब्र खोद रहा है। अपना So my students are like champions now. अपनी कब्र खुद खोद रहा है ये। हम अपनी कब्र कैसे खोदते हैं डेली? हम डेली अपनी कब्र खोद रहे हैं थ्रू आवर ओन mouth. Yes. So whenever you put anything wrong into your food, so here's a quote that I have like come to my mind. So can anybody read this? What is written on the top right? Anybody read this? With each bite, you are either increasing or decreasing your lifespan. Manish Sanghai. Yes. Now think of it this way. With each bite, you are either increasing or decreasing your lifespan. तो अगर आप सेशन के बाद जाके एक समोसा खाते हैं तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. If you eat an apple, if you swap a samosa for an apple, both cost the same, दोनों का कॉस्ट सेम है. लाइफ स्पैन विल इंक्रीज. लॉजिकल. तो आज से आप खाने के पहले आप लोगों को ये होमवर्क है. खाने के पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, whether the food that I'm going to eat, whether I'm eating for enjoyment, मजे के लिए खा रहे हैं कि नरिशमेंट के लिए खा रहे हैं. Whether I'm eating for enjoyment or nourishment, whether I'm increasing my lifespan or decreasing my lifespan. बिलीव में आप कभी गलत चीज नहीं खाएंगे, बिकॉज आपका कंसाइंस बोलेगा कि ये मेरा लाइफ स्पैन कम कर रहा है. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. अभी मैं सबके घर देख रहा हूँ, जो जो कैमरा ने कितना घर सपना सुंदर रखा है, एक दाग नहीं है दीवार में, एक कचरा नहीं है, कुछ नहीं है. कोई भी बाहर से म्युनिसिपैलिटी का कचरा अपने घर में लाता है? एनीबडी डज दैट? सब अपने घर को सुबह उठ के साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सुंदर लगाते हैं, वासेस लगाते हैं, डेकोरेटिव आइटम लगाते हैं. क्यों हम अपने शरीर में कचरा डालें? उसका नाम ही है जंक फूड. Why do we put that into our bodies? See, if you want to live longer, I want to live 120 years. मेरे सारे students यहाँ पर हम एक 6th blue zone बना रहे हैं. I'm confident that each of my students will cross 100 years. I'm sure of that. But if you want to live 100 years, it's a game of probabilities. Understand that. So whatever actions you take, whatever decisions you take, whatever you put into your mouth, whatever thoughts that you think, what you see, what you hear, your perceptions, everything affects the probability of living longer. तो अगर आपको लंबा जीना है तो बॉडी में मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? अवर लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, स्टमक, ये 5-6 ऑर्गन है जिसका आपको ज्यादा ध्यान रखना है. दैट्स इट. इफ यू फोकस ऑन दीज ऑर्गन्स ना, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग लॉन्गर विल इंक्रीज ड्रामेटिकली. Isn't that wonderful? Isn't that give you hope that yes, we can do something about ourselves? मुझे तो ये 5-6 ऑर्गन्स का खाली ध्यान रखना है मेन. एंड खाने के पहले क्या सोचना है, क्या बताएगा, कौन बताएगा? What do we have to ask ourselves? Whether is this increasing or decreasing my lifespan, or whether I'm eating for nourishment Is or it for enjoyment? nourishment or enjoyment? Yes. And second important क्या था? Is it increasing or decreasing my lifespan? And there is no middle way कि थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा चलता है, कभी कभी चलता है. That is a weak mind's excuse. आपका मन कमजोर है, इसके लिए आप बोलते हैं कि कभी कभी जंक फूड चलता है. आप कभी कभी कचरा अपने घर में लाएंगे क्या? बीएमसी का कचरा चलो ना, आज ले, आज संडे है, आज संडे को कचरा ले आते हैं घर में. एक दिन चलता है, वीक में एक दिन तो कचरा चलता है. See, my job as a teacher is to give you the best. What is best for you? Whether you want to eat junk food once a week, twice a week, 80%, 20%, this is all a weak mind's excuse कि मुझसे मेरा कंट्रोल नहीं है. तो क्लियर एवरीवन, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो अगर आप सेशन के बाद अगर आप अच्छा खाना चालू कर दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग लॉन्गर विल इंक्रीज, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग कैंसर विल डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. जो हम सीखने वाले हैं आगे. सो आई विल जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट पीपीटी. सेल्स क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया. नाउ मैंने शुरू में आपको एक बैड न्यूज दिया कि हमारे शरीर में क्या है, कैंसर सेल्स है. तो आपको कैंसर हुआ क्यों नहीं अभी तक? कौन आपको बचा रहा है? हु इज प्रोटेक्टिंग यू? एनी गेसेस? Our immune system. Immunity. Immunity, yes. Super. I have a beautiful audience today. Beautiful. So our अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, it's our immune system that is protecting us always. तो ये जो कैंसर की जंग है, ये हमें 2 तरीके से लड़नी है. जैसे पाकिस्तान से लड़ना है तो आर्मी भी है और एयरफोर्स भी है, राइट? जो हमने फाइटर पिक्चर में देखा था कि नीचे से आर्मी अटैक करती है, ऊपर से एयरफोर्स अटैक करता है. तो वैसे ही अगर हमें कैंसर से बचना है तो 2 pronged अप्रोच होगा हमारा. एक, हमें शरीर में कार्सिनोजन डालना बंद करना पड़ेगा. कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं कार्सिनोजन. कैन एनीबॉडी टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कार्सिनोजन सो दैट एवरीबॉडी नोस. तो हमारा जो अप्रोच है कैंसर के लिए, इट विल बी 2 pronged अप्रोच. 2 हथियार है हमारे पास. एक है हमें शरीर में कार्सिनोजन डालना बंद करना है, जो हम सीखेंगे अभी, वाटर कार्सिनोजन सीखेंगे हम. एंड दूसरा, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है. तो समझ जाइए,
कार्सिनोजन हो गया हमारा आर्मी, एक हो गया हमारा एयरफोर्स। पाकिस्तान से लड़ना है हमें, या जिससे भी हमें लड़ना है, हमारे दुश्मनों से लड़ना है। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ नहीं समझे प्लीज अनम्यूट एंड आस्क मी, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ टॉक एंड नथिंग एल्स। सो मुझे मैसेज आ गया कि मेरा एक डेटा खत्म हो गया, दूसरे डेटा पे शिफ्ट कर लूंगा, देखता हूँ कब तक गाड़ी चलती है। नो प्रॉब्लम। या तो अब पहले क्या सीखना है, इम्यूनिटी सीखना है कि पहले ये सीखना है? फिर पहले रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो हम गलतियां कर रहे हैं ना, पहले हम गलतियां देखते हैं, वो सब बाद में सीखेंगे हम कि हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू डू दैट, दैट विल लर्न लेटर ऑन। मेरे 4 पावर पॉइंट ओपन हो गए, नो प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन। लेट्स लुक एट द फर्स्ट रिस्क फैक्टर जिसके लिए हम बोलते हैं कि ये हेल्दी बंदा है। हम बोलते हैं ना बहुत हेल्दी बंदा है, बहुत हेल्दी बंदा है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट रिस्क फैक्टर, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, obesity. So what is obesity? If your BMI is more than 30, you are qualified as obese. But for my students, I say if you're above 25, you're obese. I want the best standards for my students. I don't want them to be like mediocre जो US FDA बोल रहा है या इंडिया बोल रहा है. If your BMI is above 25, you are at a risk of cancer. BMI क्या होता है? एक मशीन आती है उसमें आ जाता है, बट बेसिकली आपका जो वजन होना चाहिए, जैसे मेरा वजन होना चाहिए हाइट एंड वेट के हिसाब से स्ट्रक्चर 65 होना चाहिए. इफ माय वेट इज मोर देन 75, आई एम क्वालिफाइड एज ओबीस. बेसिकली मोर देन 20% से आपका ज्यादा है तो ओबीस है. तो ओबेसिटी इज द नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैंसर रिसर्च यूके बोल रहा है ये. तो अगर आपको आप में मोटापा है शरीर में आपके, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपको ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर जो स्टीव जॉब्स को था, रीनल कैंसर, किडनी, बॉवल, वूम्ब में होता है, थायराइड, लिवर, अपर स्टमक, बाप रे बाप. सो व्हाट इज बेटर? 9 महीने का पेट लेके चलने से अच्छा है कि उसको हम कम करें? व्हाट शुड वी डू? ऑब्वियसली वी शुड एम टू ब्रिंग डाउन आवर वेट. इट इज द नंबर 1 रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर. सो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम 115 किलो में खुश है ना, खुशी की कोई बात नहीं 115 किलो में. एंड कोई आप मन में बहाना मत बनाइए आप कि मेरा वजन कम नहीं होता है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा मसल्स ऐसा है, मेरा ये वैसा है. नो. इफ योर BMI इज अबाउट 25, if your weight is more than 20% of your actual weight जो होना चाहिए, you are at a risk of cancer. आपके अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है. एंड ये मत सोचिए कि आपको नहीं हो सकता. मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लाइफ में 2 डिल्यूजन होते हैं. बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. 2 डिल्यूजन होते हैं. एक होता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, दिस कैनॉट हैपन टू मी. कैंसर तो दूसरों को होता है. जब मेरी मदर को हुआ ना, आई वाज शॉक्ड. मैं छोड़ो ना, इतना बार करा है आज तक तो नॉर्मल आया, खाली 2-4 घंटा बर्बाद होगा, 4,000 रुपए लगेंगे, भाई क्यों करा रहे, आज तक तो नॉर्मल आया. मैं मदर बोली नो नो आई कुड फील समथिंग हियर, लेट्स डू इट. थैंकफुली वी डिड इट. तो हमें लगता है हमें नहीं हो सकता. दूसरा भ्रम है हमारे पास बहुत समय है. ये हम आज क्यों डाइट फॉलो करें? हम 1 महीने बाद डाइट फॉलो कर लेंगे, हम 1 साल बाद फॉलो कर लेंगे, हम अपने बर्थडे के बाद फॉलो कर लेंगे, चलो आज तो खा लो कल कर लेंगे. हमारे पास बहुत समय है. हमारे पास कल आप जिंदा रहेंगे कि नहीं, कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, गारंटी नहीं. एंड मैंने जैसे बताया कि हर बाइट के साथ आप अपना जिंदगी या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं. तो अगर अपने बच्चों को आप बर्थडे पे केक दे रहे हैं, वो केक नहीं है, मैदा, तेल और शक्कर है वो. दीज 3 आर कार्सिनोजेन. जो हम केक काटते हैं ना, बेटा तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, आप उसकी जिंदगी एक्चुअल में कम कर रहे हैं उसको, वो केक खिला. केक भी हेल्दी बन सकता है. आई एम नॉट अगेंस्ट केक, आई एम अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केक जो हम उस केक में डाल रहे हैं. आप अगर बच्चे को आप सुबह सुबह दूध देते हैं ना, उस दूध में कौन से हार्मोन जा रहे हैं हम सीखेंगे आगे. हम सोचते हैं मेरा बेटा दूध पढ़ के पार्ले जी बिस्किट खा के जीनियस बनेगा. देन इट्स योर बिग मिथ कि कोई बच्चा पार्ले जी खा के जीनियस नहीं बना आज तक. कोई बच्चा दूध पी के नहीं बढ़ता है. दूध पी के खड़ी गाय के बच्चे बढ़ते हैं. इंसान के बच्चों को बीमारी होती है दूध पी के. हम सीखेंगे व्हाई मिल्क इज बैड फॉर अस. आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, इट्स अप टू यू whether you want to follow this or not. But what I have learned, what I have experienced, I'm just speaking from my experience. So be very clear कि आपको ये नहीं हो सकता. आप बहुत खुश हैं, खुश रहिए. I wish for you, you always be happy. But there is a ticking time bomb in you if you're obese. It's a very, very take this as a wake up call today. This session is a wake up call for everyone who are obese. जिसका वजन ज्यादा है, you have to bring down your weight. No questions asked. तो मोटापे से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है हमारे शरीर में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. बॉडी फैट हमारे लिए खराब क्यों है? बॉडी फैट रिलीज करता है एक हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन. एंड व्हाट इज एस्ट्रोजन? इट इज अ रिसेप्टर फॉर कैंसर सेल्स. कैंसर सेल्स लव एस्ट्रोजन. तो अगर आप में मोटापा है ना, तो हमेशा आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है. आपकी कैंसर की फैक्ट्री फुल स्पीड में चल रही है. वो कब फटेगा आपको पता नहीं है.
something happens which is called as insulin resistance, which is again हमारे सेल्स के ऊपर एक परत बन जाती है जो इंसुलिन अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। ये तीन का नतीजा क्या होते हैं? जब ये तीन फैक्टर्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, एस्ट्रोजन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उससे क्या स्पीड अप हो जाता है हमारा? Who will read it out? Anybody wants to read it out? क्या होता है? Because I want this to you guys to absorb this. Harpreet, you can read it for me. क्या होता है? Speed. Yeah. Speeds up the multiplication of cells. सेल्स, यस। तो सेल सबकी बॉडी में, कैंसर सेल सबकी बॉडी में है, बट ये हमारे हाथ में है। हम पहले मोटापा को कम करें, उससे हमारा इन्फ्लेमेशन कम होगा, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होंगे, इंसुलिन सेंसिटिव बन जाएंगे हम, एंड हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है वो स्लो हो जाते हैं उससे। तो व्हाट इज द एक्शन प्लान नाउ? तो मैं आपको एक्शन प्लान सबके साथ में एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, खाली मैं आपको जागरूक नहीं कर रहा हूँ आज। एक्शन प्लान क्या है? हरप्रीत, कैन यू रीड इट आउट फॉर मी? व्हाट इज द एक्शन प्लान? Aim to bring your body weight down by 2 kgs every month till मैं you ये नहीं reach बोल रहा हूँ आप, body weight. या मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक महीने में 20 किलो वजन कम करना है। नो, yo-yo diet is not good for us. Don't go on a very strict diet after this class. Gradual changes लाने, baby steps लेने हमें। Don't lose hope. अगर आपका वजन एक दिन में कम नहीं होता, एक दिन में नहीं होगा, बट ग्रेजुअली आप अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप करेंगे, आज आप जो डाइट फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली 2 किलो भी कम करेंगे ना, एक साल में 25 किलो कम हो जाएगा। सोचिए। नेक्स्ट हरप्रीत, या Set small goals till you reach your ideal weight. यस। हमें जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा गोल एक साथ सेट मत करिए। 40 किलो ज्यादा है तो 40 किलो कम करना है। 2-2 किलो करके छोटा गोल सेट करिए। मुझे हर घंटा उठ के वॉक करना है, मैं आपको सिखाऊंगा वो क्यों जरूरी है आगे। मुझे कैसे हेल्दी चॉइसेस लेने हैं, क्यों टाइम पे सोना है हमें। छोटे छोटे हम गोल सेट करेंगे, वन थिंग एट अ टाइम। मेन जो मेन का बीएमआई होना चाहिए 21 और लेस, एंड वुमेन 25 और लेस। दिस इज द आइडियल, आई एम टेलिंग, आइडियल। इफ यू वांट टू लाइक ड्रास्टिकली रिड्यूस योर चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर, देन दिस शुड बी योर बीएमआई। बहुत सिंपल सी मशीन आती है जो मेरे सारे स्टूडेंट्स के पास में, वो मशीन आप ले आइए घर में। इट्स अ लाइफ ट्रांस मशीन, वेरी गुड। मेरा कोई कमीशन नहीं, आई डोंट नो दैट कंपनी, बट आई टेल एवरीवन टू बाय। कोई भी एक मशीन होनी चाहिए आपके पास जो आपका बीएमआई बतावे। ओनली वेट इज नॉट इनफ, फैट परसेंटेज, बीएमआई हमें पता होना चाहिए अपने बारे में। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रिस्क फैक्टर मैंने एक साथ बता दिए हैं। एक है सिटिंग, जो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। कौन कौन यहाँ पर डेली एक्सरसाइज करता है और गो डू सम फॉर्म ऑफ वॉक और योगा और एनीथिंग? मेरे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली करते हैं। अदर्स आई डोंट नो, मोस्टली कैमराज आर ऑफ। बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट मूविंग डेली, एंड नॉट ओनली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सुबह 40 मिनट के अंदर 23 घंटे बैठे रहेंगे ना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। यू हैव टू गेट अप एंड मूव एवरी आवर। इट इज कॉल्ड एज नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो जैसे आप अगर मॉल जाते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क कर दीजिए आप, एंड जस्ट वॉक 500 स्टेप्स। आप अगर 4th फ्लोर पे रहते हैं तो डोंट टेक एन एलिवेटर, जस्ट टेक द स्टेयरकेस। सिंपल, छोटे छोटे चेंजेस करने में। ऐसा नहीं कि हमें हर घंटा उठ के वॉक करना है। आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप थोड़ा सा दूर वाला वॉशरूम चूज करिए, अगर आपके ऑफिस में ज्यादा वॉशरूम है या आप कहीं हैं। लंच के बाद वॉक के लिए चले जाइए, डिनर के बाद वॉक के लिए चले जाइए आप। इस तरह से हमें एक्टिविटी पूरे दिन रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास क्या है, देख रहे हैं? व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ मी? वाटर बॉटल, सबको दिख रहा है वाटर बॉटल? अभी मैंने वाटर बॉटल में पानी भर दिया। अगर 10 दिन तक ये पानी इस बॉटल में रहता है, क्या मैं इसको पीऊंगा? विल आई ड्रिंक इट? नो। व्हाई वोंट आई ड्रिंक इट? Stale. स्टेल। पानी सड़ जाएगा, इट विल बिकम स्टेल। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट आर आवर बॉडीज मेड अप ऑफ? 70% क्या हमारे बॉडी? Water. वाटर। सो आई होप यू गॉट द आंसर। यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू नो व्हाई मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम मूव नहीं करेंगे, हमारे सेल्स डीजेनरेट होते हैं। इट इज कॉल्ड एज एट्रोफी, ATROPHY। सर्टेन एट्रोफी अकर्स। हम एजिंग हमारी फास्ट हो जाती है। तो लोग मुझे देखते हैं, मनीष यार तुम 40 के, आई एम 40 नाउ, यू लुक लाइक अ 20-25 ईयर ओल्ड। व्हाई? बिकॉज आई एम एक्सरसाइजिंग ऑलमोस्ट डेली फॉर द पास्ट 16 ईयर्स। हाँ, रेस्ट डेज होते हैं, उस दिन मसाज लेता हूँ, उस दिन थोड़ा स्ट्रेचेस करता हूँ। ऑलमोस्ट डेली मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। माई एजिंग इज रिवर्सिंग, मेरा एज रिवर्स होते जा रहा है। आई डोंट लुक लाइक, स्कूल में पीटी में जाता हूँ तो बोलते बड़े भाई को नहीं लाना है, मैं डॉटर 17 नाउ, तो बोलते यार बड़े भाई को नहीं लाना है, बाप को लेके आओ। तो हम लोग हंसने लगते हैं एक दूसरे को देख के कि यार आई एम अ फादर ओनली, इवन माय वाइफ लाइक शी लुक्स लाइक 18 नाउ। तो सेल्स क्या हो रहे हैं हमारे?
हमारा जो सेल्यूलर रीजनरेशन प्रोसेस है बहुत फास्ट है हमारा, कि हम जब कसरत करते हैं तो पुराने सेल्स मरते, नए सेल्स पैदा होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, कहीं सीखने नहीं मिलेगा आपको। वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड नॉट ओनली एक्सरसाइज, क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन हमें एक्टिव रहना है। नाचिए, गाइए, डांस क्लास जाइए, स्पोर्ट खेलिए, ये नहीं करेंगे वॉक ही करिए। मेक इट फन, मेक एक्सरसाइजिंग फन फॉर यू। जैसे मेरी क्लासेस में होता है, पीपल जस्ट लव, मैं वो बोलता हूँ एडिक्शन है मेरी क्लासेस का लोगों को, पीपल आर एडिक्टेड टू माई क्लासेस। तो क्यों एडिक्शन कैसे होता है ये, जब उसको फन बनाते हैं। तो एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आपको कोई योगा पसंद नहीं तो योगा मत जाइए, योगा क्लास, गो टू अ जिम। जिम पसंद नहीं है, स्विमिंग कर लीजिए, स्विमिंग पसंद नहीं है, रनिंग के लिए जाइए, रनिंग पसंद नहीं है, पर कुछ तो करिए, डू समथिंग, वरना पानी अंदर सड़ने लगेगा आपका। आप उसको प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं, अपने जो कैंसर सेल्स के ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है आपका। ब्रेक पे आप पैर रख रहे हैं, सॉरी एक्सेलरेटर पे आप पैर रख रहे हैं आप, अगर आप कसरत नहीं कर रहे हैं तो। समझ रहे हैं आप? क्लियर एवरीवन व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट? तो आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू दैट आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी है, मेरा टाइम अगर सूट नहीं करता है या मुझे जो आप पसंद नहीं करते हैं, डोंट वरी, आई हैव मेनी कॉन्टेक्ट्स, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मेरी टीचर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है तेरा। बट मूव करना है हमें डेली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपको गद्दा तोड़ना पसंद है, बाद में हॉस्पिटल का गद्दा आपको तोड़ना पड़ेगा, सॉरी टू से दैट। वो बोलते हैं ना, आज मैं आराम कर रहा हूँ, आज मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, बाद में हॉस्पिटल में रिलैक्स करेंगे आप। बिकॉज माइंड हमारा क्या होता है, बहुत बोलते हैं ना, इट्स अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर, टेरिबल मास्टर, टेरिबल मास्टर। माइंड को हावी नहीं होने देना है, बहानेबाजी नहीं करने है। छुट्टी के दिन खाना कोई छोड़ देता है, संडे को कोई खाना छोड़ता है, तो संडे के दिन एक्सरसाइज क्यों नहीं होना चाहिए? मेक इट अ पॉइंट दैट मिस योर मील्स बट नेवर मिस योर डेली राउंड्स ऑफ एक्सरसाइज। इतना इंपॉर्टेंट है कसरत हमारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई दिन बॉडी सो रहे, कोई दिन बॉडी रेस्ट मांग रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। रेस्ट डेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उस दिन वॉक कर लीजिए, मे भी थोड़ा मसाज ले लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, बट डू समथिंग फॉर योर बॉडी। रूटीन मत छोड़िए कि सुबह अगर आपका एक सेक्रेट टाइम होता है ना, दैट 6 to 7 या 7 to 8 या 8 to 9, वॉट एवर टाइम यू गेट अप, दिस 1 hour इज फॉर माई बॉडी, फॉर माई फिजिकल बॉडी। मैं उसमें चाहे वॉक करूँ या स्विमिंग करूँ, कोई स्पोर्ट खेलूँ, योगा करूँ, जिम जाऊँ, कितने ऑप्शन है यार। कैन वी डू इट? करेंगे सब, प्रॉमिस। जिसका कैमरा ऑफ है शो मी अ थम्स अप, दिखा सकते हैं सब ऑन करके भी, या इमोजी दिखा सकते हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस आई विल डू इट। देन मेरा सफल होगा ये, वरना तो ये खाली कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा। दैट क्यों मूव करना जरूरी, मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल से आप लोगों को समझाया। एंड स्मोकिंग के लिए तो कुछ नहीं, में अगर स्मोक कर रहे हैं तो यू डोंट हैव अ राइट टू कंटिन्यू द सेशन नाउ। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं देन बेटर यू लॉग ऑफ एंड बी प्रिपेयर फॉर अ डेथ सेंटेंस। ओके, तो अगेन मैंने वही जो एक्शन प्लान बताया था, एक्सरसाइज डेली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, सेट अलार्म। अच्छा, मैं कैसे करता हूँ, अलार्म सेट कर लेता हूँ, या मेरे पास ये स्मार्ट वॉच है जो मुझे हर घंटा मूव करने के लिए बीप करने लगता है, एंड जब तक मैं मूव नहीं करता हूँ रुकता नहीं है ये, तो ये मुझे भगाता है ये आजकल। इन्वेस्ट इन गुड स्मार्ट वॉच जो आपको नोटिफिकेशन दे। क्विट गुटखा, स्मोकिंग, टोबैको इमीडिएटली। कचरे के डब्बे में डाल के आ जाइए, आपके पास अगर घर में है ना, उसको उसकी जगह कचरे के डब्बे में। कचरा का डब्बा भी बोलेगा क्यों दे दिया मुझे ये, यार मैं इतना खराब हो गया ना। ये तो हो गया दो रिस्क फैक्टर, पहले मैंने बताया ओबेसिटी, दूसरा बताया नॉन मूवमेंट, तीसरा आई कम टू कॉफी लेटर ऑन, या यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन देन विल टेक इट लेटर ऑन, बिकॉज मुझे रिस्क फैक्टर्स कवर करना बहुत जरूरी है। तीसरा रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीखा है कॉर्नेल से सीखा मैंने, दिस टर्म आई लर्न फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, व्हिच इज समथिंग कॉल्ड एज एनिमल प्रोटीन। तो व्हाट इज एनिमल प्रोटीन? एनिमल प्रोटीन इज एनीथिंग दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। जो प्लांट सोर्स से नहीं आता उसको एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कन्वर्ट टू वीगनिज्म, या आप दूध छोड़ दीजिए, या मीट छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए, इट्स टोटली योर कॉल। मैंने जो सीखा है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये जो मेरे प्रोफेसर 50 साल का जिनको तजुर्बा है, डेविड लेविट्स्की, ही इज माय प्रोफेसर फ्रॉम यूएस, तो उन्होंने मुझे सिखाया दैट, एंड मेरा 1-on-1 सेशन किया था मैंने उनके साथ, दैट व्हाई एनिमल प्रोटीन इज बैड फॉर यू, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। तब मे बी आप शायद आपके चॉइसेस, एनिमल प्रोटीन जैसे मैंने बताया आपको, एनीथिंग कम फ्रॉम एनिमल्स, बीट मिल्क, बीट अंडा, बीट मीट, एनीथिंग, फिश, whatever is from a non plant source। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आपके चांसेस किसके बढ़ रहे हैं? तो कोलोन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं इफ यू आर टेकिंग एनिमल फैट, एनिमल प्रोटीन। जो बोलते हैं ना जिम गोअर्स को प्रोटीन चाहिए, मुझे तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन लूंगा तो मेरे मसल्स वीक हो जाएंगे। ओके, सो आई हैव नॉट टेकन एनिमल प्रोटीन फॉर द पास्ट 2.5 years almost, and I have climbed the highest mountain peak in Gujarat, the गिरनार पर्वत में क्लाइंब किया विदाउट एनी सोरनेस। तो मेरे जो गुजराती भाई है ना, छाछ 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 करते हैं कि छाछ के बिना तो हमारा दिन का शुरुआत नहीं होता, छाछ के बिना दिन का अंत नहीं होता, इसीलिए गुजराती इसको आज के दिन इतना हार्ट अटैक्स आ रहा है, गुजरात में इतना स्टमक अल्सर्स हो रहे हैं, स्टमक कैंसर हो रहे हैं,
यू वांट टू फैक्ट? गुजरातीज जो है यहाँ पर, मेरे गुजराती भाई बंदे, फैक्ट चाहिए आपको? गवर्नमेंट का फैक्ट है, नेट पे आके चेक कर सकते हैं, मेरे पास डाउनलोडेड नहीं, वाला दिखा देता आपको मैं अभी। 40% ऑफ हार्ट अटैक्स इन गुजरात हैपन बिटवीन द एज ऑफ 11 and 25। क्या करते हैं? बच्चा पैदा नहीं होता, माँ का दूध बाद में पिलाते, पहले छाछ पिलाते उसको। कि 2 साल का बच्चा ही बोलता है कि छाछ नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा जो भी उनको बोलते हैं गुजराती में, कि छाछ तो जोए छे। क्या हो रहा है एनिमल प्रोटीन से? आप सोचिए तो सही, आपके बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है उससे, मोटापा ऐसे बढ़ रहा है। गुजरातियों को देखो तो एकदम, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, सॉरी आई एम नॉट अगेंस्ट, बट मैं गुजरात में मेरा बिजनेस है, मैं गुजरातियों को देखता हूँ तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि क्या करता है दूध हमारे लिए। तो सी, आप लॉजिकली समझिए मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ एनिमल प्रोटीन के लिए। तो एनिमल प्रोटीन में हमें लगता है कि हमें शरीर में प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इज समथिंग ना, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारा लिवर खुद बनाता है। ये तो फूड मार्केटिंग कंपनीज ने हमारे मन में भ्रम बैठा दिया है कि प्रोटीन 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 प्रोटीन। क्या कोई दूसरा प्राणी प्राणी सोचता है? क्या लायन सोचता है मुझे मेरा प्रोटीन कहां से मिलेगा? क्या गाय सोचती है मुझे मेरा प्रोटीन कहां से मिलेगा? क्या एलिफेंट सोचता है मुझे, एलिफेंट कितना मजबूत है, वेजिटेरियन है, कोई एलिफेंट कभी दूध नहीं पिएगा। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दूसरे प्राणी का दूध पीता है। इंसान ही अकेला प्राणी है जो दूसरे प्राणी का दूध पीता है ये सोच के कि मुझे प्रोटीन मिलेगा। बोलते हैं इंसान इतना गिर गया है, हम दूसरों को मार के खाते हैं, हम वो जानवर को मार के खा रहे हैं जिसके घर में पेट्स है, वो जानते हैं उनमें इमोशंस होते हैं, वो आपको अपने मदर माँ बाप समझते हैं, हाँ, उसके अंदर भावनाएं फीलिंग्स हैं, पर हम उसको मार के खाते हैं कि हमें तो हमारा प्रोटीन चाहिए। किसने बोल दिया? फूड मार्केटिंग कंपनीज ने बोल दिया हमें। तो दूध 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 वंडरफुल दूध किसने बोला? सबको मालूम है कौन सी कंपनी की ऐड है, राइट। खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, किसने बोला? किसी और ने बोला, एंड उसको हम सच मान लेते हैं। It's such a big myth that we are dependent on other species for our nutrition. It's a big myth. ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम से हमें निकलना है। उसमें क्या मिलता है हमें? बहुत बड़ा बैगेज एक आता है, सैचुरेटेड फैट, विच इज द मेन कल्प्रिट। तो अब ये मत बोलिएगा मैं लो फैट मिल्क लेती हूँ। सी, दिस इज ऑल मार्केटिंग फंडा, A2 मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क, लो फैट मिल्क, जीरो फैट मिल्क। अगेन दीज आर ऑल मार्केटिंग फंडास, आप लोग को फंसाया जा रहा है। उसमें जो सैचुरेटेड फैट आता है उसमें क्या होता है, आप सीखिए अभी, नाउ लॉजिक सीखिए। अभी मैंने आपको खाली कारण बताया क्यों खराब होता है। तो एक तो कोलोन कैंसर को आप कर रहे हैं अपने बच्चे को, अगर रोज सुबह आप स्कूल जाने के पहले दूध देते हैं ना, ले बेटा मैं तेरे कोलोन कैंसर का जड़ अभी से कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट कम्स ब्रेस्ट कैंसर। मिल्क में 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो गाय प्रोड्यूस करती है, विच आर द मेजर रिसेप्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड इज प्रोस्टेट कैंसर इन मेन। कितना कॉमन है, मतलब आजकल तो कैंसर बोलते हैं 70 साल का हो गया तो कैंसर तो होगा ही। अरे नहीं होता है बॉस, कैंसर इज नॉट समथिंग विच इज कॉमन, इट शुड नॉट हैपन। 30 साल पहले कोई कैंसर जानता नहीं था। 30 साल पहले दूध इतना कॉमन नहीं था जब मिल्क रेवोल्यूशन नहीं आया था इंडिया में। कैंसर वॉज अ अनहर्ड थिंग। कैंसर सुनते तो लगता था अरे कैंसर हो गया है, और आजकल कैंसर हो गया तो बोलते हैं क्या बात है, ठीक है ना, सर्जरी करा लो, कीमोथेरेपी लो, रेडिएशन लो, ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी बन के रह गया कैंसर आजकल। तो अगर आप मीट एंड मिल्क ले रहे हैं ना, तो बी प्रिपेयर फॉर दीज 3 कंडीशंस, कोलोन, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट। क्यों खराब है? मैंने बोला सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट जब हमारे बॉडी में आता है, हमारे लिवर को कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट डज आवर लिवर प्रोड्यूस? या विच इज समथिंग कॉल्ड एज बाइल, BILE। तो हमारा शरीर एक्चुअली एनिमल फैट के लिए बना ही नहीं है। अवर बॉडीज आर नॉट मेंट टू डाइजेस्ट एनिमल फैट। एनिमल फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को बाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है, विच इज अ कार्सिनोजन। तो अगर आप अभी दूध पी रहे हैं, वो दूध के फैट को पचाने के लिए, प्लीज म्यूट एवरीवन, किसका म्यूट है प्लीज। उसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को बाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है, विच इज अ कार्सिनोजन। तो वो बाइल क्या करता है? एक्सेलरेटर पे पैर रखता है, थोड़ा सा, आज थोड़ा सा रखा, कल थोड़ा सा रखा, एंड किसी का 10 साल में, किसी का 15 साल में, किसी के 50 साल में वो कैंसर का रूप ले लेता है, डिपेंडिंग ऑन योर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेन कल्प्रिट? इट्स द सैचुरेटेड फैट। व्हाट आर अदर सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट? कौन बताएगा मेरे को? चलो आई वांट यू गाइस टू स्पीक नाउ। व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ Processed सैचुरेटेड? food. Super. So that is not processed food. See, again a big myth. उसको आप फूड बोलना बंद करिए, दैट इज अ प्रोडक्ट। उसको कुछ इंजीनियर्स ने, IITians ने, MBAs ने एक बोर्ड मीटिंग करी, उन्होंने समझा कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज डोपामिन, व्हाट इज सेरोटोनिन, व्हाट इज जो भी है, क्या खाने में डालने से दे हैव इंजीनियर्ड अ प्रोडक्ट विच इज अ पिज्जा, विच इज अ बर्गर, विच इज अ पानी पूरी। उनको पता है कि वो स्वाद से क्या हिट होगा एंड वो ज्यादा खाएगा। दे वांट अस टू कंज्यूम मोर। It's an engineered product. Stop calling it food.
वो खाना नहीं है, प्रोडक्ट है वो। फूड क्या होता है? जो प्लांट सोर्सेज से आते हैं वो हमारे लिए बना है, वो खाना होता है, दैट इज अवर फूड। तो जो प्रोसेस्ड फूड, जो दिव्या भाभी राइटली सेड, यस, जो प्रोसेस्ड है, जो नेचुरल फॉर्म में नहीं है, हमने उसके पूरा केमिकल कंपोजिशन, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया उसको, एंड देन वी ईट इट। कोई खा ही नहीं सकता है। आपको अगर दूध पीने बोलो ना, कोई गाय का दूध नहीं पी सकता है। उसमें हम उसको हमें पहले गर्म करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, उसमें शक्कर, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, तो ही हम पी सकते हैं उसको। कच्चा दूध कोई पी सकता है? यहाँ पर नहीं। तो यू आर नॉट क्रेविंग फॉर मिल्क, यू आर क्रेविंग फॉर दैट शुगर। शुगर का हमें क्रेविंग हो रहा है। ये प्रोसेस्ड फूड। और क्या चीज से मिलता है सैचुरेटेड फैट? कौन बताएगा? ये तो खाने Oil. से मिलता है। Oil. ऑयल, यस। Fine flour, मैदा. ऑयल, आई कम टू ऑयल फर्स्ट। ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने के लिए ऑयल बहुत जरूरी है। तो ऑयल अगर हम गर्म करते हैं, टर्न्स इनटू अ कार्सिनोजन। वो टोल्ड दैट खाने के लिए ऑयल जरूरी है। ऑयल का एक चम्मच पी के देखिए, ऑयल का स्वाद क्या होता है, मान पड़ जाए। जो बोलते हैं ना ऑयल खाना टेस्टी बनाता है। तो शरण इंडिया, अगेन मैं नाम लूंगा, शरण इंडिया का, देयर वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, दे टीच कुकिंग विदाउट ऑयल। तो मैं सब कुछ खाता हूँ। आई ईट समोसा ऑल्सो, बेक्ड समोसे खाते हैं। आई ईट माई पिज्जा ऑल्सो, मेड ऑफ, घर पे हम बेस बनाते हैं खुद। आई ईट zucchini नूडल्स ऑल्सो। आई हैव रॉ सूप्स। माई फूड इज सुपर टेस्टी। You don't need to stop anything. You just need to learn and replace. So मैं छाछ रोज पीता हूँ। मैं गाय के दूध का छाछ नहीं पीता हूँ, कोकोनट मिल्क का छाछ पीता हूँ, पीनट कर्ड का छाछ पीता हूँ। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 4 घंटा डॉक्टर के पास बिता के आते हैं तो हमें लंबा नहीं लगता है। और मैं किसको बोल दूंगा ना, 4 घंटा आप एक कोर्स करके आप ऑयल फ्री कुकिंग सीख लो। भैया समय नहीं है, मनीष जी मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर के पास समय है, 4 घंटा वहां 5,000 रुपये फीस दे के आते हैं, 4 घंटा बैठ के आते हैं, उसके लिए समय है आपके पास। पर इसके लिए समय नहीं है कि हम ऑयल फ्री कुकिंग सीखे, बिना तेल का खाना कैसे बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक बार आपको खाने का असली स्वाद आ गया ना, आप फिर वो खाने के प्रति पास कभी जाएंगे ही नहीं। यू वोंट गो बैक टू योर ओल्डर वेज। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग हाउ टू कुक। ऑयल इज अ बिग 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 कार्सिनोजन। ऑलिव ऑयल, फिर क्या बोलेंगे? ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, अरे ये तो गुड ऑयल है, ये तो अच्छा तेल है। तेल तेल होता है, गर्म होते ही वो कार्सिनोजन बन जाता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो बाइल कैसे एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे लिए खराब है, हमने सीखा अभी। इसके लिए एक्शन प्लान क्या है? reduce or stop the intake of milk and milk products. Avoid processed meat altogether. Eat natural foods as far as possible, rich in antioxidants. Cancer cells love sugar. तो कौन बताएगा कौन सा टेस्ट ऐसा होता है जो हम करते हैं फॉर डायग्नोसिंग कैंसर? किसी को पता है कौन सा टेस्ट होता है? देयर इज अ स्कैन दैट हैपेंस। एक स्कैन करते हैं, व्हाट इज दैट स्कैन कॉल्ड? PET scan. पेट स्कैन होता है। तो पेट स्कैन के पहले एक हमें इंजेक्शन दिया था, जिसका भी घर में पेट स्कैन, घर में किसी रिलेटिव का खुद का हुआ है, उसको मालूम है Sugar इंजेक्शन का. में क्या होता है? वो शुगर, दैट इज अ रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। बिकॉज जब ग्लूकोज, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज हमारे शुगर हमारे बॉडी में जाता है, कैंसर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं एंड वो शो करता है, फिर वो पेट स्कैन में शो करता है। तो कैंसर सेल लव शुगर। आई एलिमिनेटेड शुगर इन 2008 फ्रॉम माई लाइफ। 2008 के बाद मैंने कॉन्शियसली, पता नहीं लोग छुप छाप के कभी डाल दिए हो तो पता नहीं, बाकी कॉन्शियसली मैंने शुगर कभी अपने मील में नहीं लिया है। मेरे घर में खाना बनता है, पता चलता है शुगर है, तो मेरे लिए खाना अलग बन जाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बिकॉज शुगर क्या करता है? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। इट इज दैट बैड। एंड कैंसर सेल्स बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आर यू पुटिंग ऑन ब्रेक और एक्सेलरेटर? क्या कर रहे हैं बताइए? एक्सेलरेटर दे रहे हैं, प्रोटोऑन्कोजीन को आप एक्टिवेट कर रहे हैं विद शुगर। थोड़ा तो चलता है, अरे बच्चा है तो खाएगा ही ना, अरे आप नहीं खाते हो, बच्चे को तो खाने दो, अरे इसका क्या उम्र हुआ है अभी, इसको तो लाइफ एंजॉय करने दो। ऑल दिस भ्रम है आपका ये। मेरे घर में मेरी भाषा सुनता हो तो आपके घर में क्या होता होगा? आई कुड जस्ट इमेजिन। हाँ, अरे बच्चा है तो उसके तो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उसको तो और अच्छा खाना देना चाहिए आपको। शुगर फ्री उससे बड़ा जहर है, शुगर फ्री उससे बड़ा जहर है। सी सोम जी, आप तो क्लासेस ज्वाइन किए तो ऑल्टरनेटिव पता चलेंगे आपको। सो देयर आर मेनी डेट ऑल्टरनेटिव्स। सो रीटा भाभी इज इन आवर ग्रुप, अंशु इज देयर, many others are there, Anjana aunty is there, who are helping people with how to like cook without sugar. तो sugar alternatives, yes, very good question सोम जी, I have a wonderful audience today. तो कैसे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है शुगर के नाम में? देखिए, तो हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे, इसमें शुगर नहीं है, वाह वाह वाह, इट इज गुड। अब देखिए शुगर के और क्या नाम होते हैं, शुगर के और क्या रूप होते हैं, हम देखिए। These are 61 names of sugar. अगेव, नेक्टर, बारबेडोस शुगर, बार्ली मॉल्ट, बार्ली, एक फोटो ले लीजिए इसका सब। तो अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स है ना, समथिंग दैट एंड इज ओ एस ई से एंड होता है ना, फ्रुक्टोज,
या OSE से जो एंड होता है, या माइल्टिटॉल TOL से कुछ एंड होता है, तो दोज ऑल, मैल्टॉल जैसे इसमें लिखा हुआ मेल्टोज लिखा हुआ है, मेपल सिरप, दीज ऑल क्या करते हैं, तो हमारे जो MBAs एंड CAs हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं बहुत तेज है वो, उनको पता है कि जागरूकता फैल रही है, शुगर खराब है, चलो मनीष ने अपनी क्लास में बोल दिया अपने स्टूडेंट को शुगर मत लो, पर उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका। हम सोचते हैं हम शुगर फ्री चीज खा रहे हैं, शुगर फ्री, मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री, मिलेट, ऑल दिस आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी मिलेट का नया धूम चला है, मिलेट 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 मिलेट, अरे नेचुरल फूड खाओ ना, भगवान ने जो हमारे लिए बनाया है। 80-90% शुड बी नेचुरल फ्रॉम प्लांट सोर्सेज इन द मोस्ट नेचुरल फॉर्म। ठीक है, 10-20% हम रोटी सब्जी खा लिए, मिलेट्स खा लिए, दैट इज ओके, बट दैट शुड नॉट बी द क्रक्स। द बेस ऑफ द पिरामिड शुड बी हेल्दी फूड्स, द रॉ फूड्स, द फूड्स दैट आर मेंट फॉर अस टू बी ईटन, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम सीखेंगे आगे कौन कौन से खाने में खाने हैं, बट क्या नहीं खाना पहले आप उसको एलिमिनेट करिए। शुगर शुड बी एलिमिनेटेड इन ऑल फॉर्म, जो 61 नाम आपने देखे अभी, इन ऑल फॉर्म शुगर शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ। फूड शुड नॉट कम इन पैकेट्स, फूड शुड कम फ्रॉम नेचर। अगर वो बारकोड के साथ आता है, इट इज नॉट मेंट फॉर अस टू बी ईटन, सिंपल एज दैट। सी दिस इज द आइडियल आई एम टेलिंग यू। कभी कभार हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, मजबूरी है, ठीक है, दैट्स फाइन, बट अगर 80-90% आप अगर आप नेचुरल फूड्स खा रहे हैं, बिलीव मी, सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स के मैं देख रहा हूँ, इट इज लाइक मैजिक दैट इज हैपनिंग इट इन माय क्लासेस, मैजिक हो रहा है। ये लोगों की पुरानी पुरानी बीमारियां हील हो रही है, डायबिटीज जिसका 400 था उनका 100 आ गया, विद द सेम मेडिसिन कम भी कर दी उन्होंने अब, एंड पीपल आर हीलिंग। दीज आर नॉट लाइफ लॉन्ग डिजीजेस, दीज आर लाइफ स्टाइल डिजीजेस, एंड अगर जड़ लाइफ स्टाइल है तो उसका सोल्यूशन भी लाइफ स्टाइल है, मेडिसिन उसका सोल्यूशन नहीं है। क्लियर एवरीवन व्हाई हमारे शुगर एलिमिनेट कर रहे हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ शुगर? नेक्स्ट, फास्ट फूड जो हम कवर कर चुके हैं, आई कैन जस्ट टेक अ फोटोग्राफ, आई वोंट गो इन डिटेल अगेन। तो उसमें क्या क्या अमृत होता है, लेफ्ट साइड में पड़ा है कि वो सब खाने से क्या हमें अमृत मिल रहा है, सैचुरेटेड फैट, सोडियम, सॉल्ट, ऑयल, शुगर, कैलोरीज। एंड अगर आप ये सब खाते हैं ना, आपके बच्चों को अगर दे रहे हैं कि बर्थडे है, चलो बर्थडे के दिन तो खाएगा ही, हाँ, साल में एक बार खाता है उसमें भी आप मना करते हो, महीने में एक बार खाता मना करते हो, क्यों मना कर रहे हैं? बिकॉज बच्चों में कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ रहा है, प्रोस्टेट कैंसर मेन में बढ़ रहा है, एंड वुमेन में पोस्ट मेनोपॉजल कई तरह के कैंसर होते हैं, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, क्या क्या नहीं होता है। एक्शन प्लान क्या है? प्लान योर मील्स इन एडवांस। जैसे हमारी छुट्टियां प्लान करते हैं, हमारा काम प्लान करते हैं, खाना प्लान करिए एडवांस में, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अपने साथ हमेशा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट सीड्स कैरी करिए। मेरे पास है, क्या देखता हूँ मैं, या तो मैं ऐसे बॉक्सेस कैरी करता हूँ, देख रहे हैं आप ऐसे बॉक्सेस, ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक करके, दीज आर इंटरलॉक बॉक्सेस। तो इसमें आप देख रहे हैं अभी पीनट्स है, कैश्यू नट्स है। तो मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना, भले ही काम आए नहीं आए, आई ऑलवेज कैरी फ्रूट्स विथ मी, कि फ्लाइट में भी गया तो फ्रूट्स मेरे साथ में होते, ड्राई फ्रूट्स, नट सीड्स हमेशा मेरे साथ में होते। हेल्दी ड्राई स्नैक्स कैरी कर लीजिए, नहीं है तो जो बेक्ड स्नैक्स है उसको कैरी कर लीजिए, आपका इतना कंट्रोल नहीं है तो। एंड ये सबको आप भाषा बदल दीजिए। तो अगर आप बर्गर खा रहे हैं ना, पिज्जा खा रहे हैं, या जंक फूड खा रहे हैं, समोसा, भुजिया, पापड़, तो उसको आप नाम दे दीजिए कार्सिनोजन। मिठाई कि लाओ तो कार्सिनोजन लाओ तो मेरे लिए, ऐसा बोलो उसको। कभी खा, कोई खाएगा नहीं कभी जिंदगी में। क्यों खाना है हमें यार? आपका शरीर है, यू आर मेंट फॉर बिग थिंग्स इन लाइफ। क्या हम खाने के लिए पैदा हुए? बताइए आप, यू टेल मी एवरीवन। हाँ, अगर हम खाली सो के उठ जाओ, खा लो, अपना काम कर लो, रात को फिर सो जाओ, तो हमारे और जानवरों में फर्क क्या फिर? एंड वी आर जस्ट लिविंग अ वेजिटेटिव एग्जिस्टेंस। व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। हम सुबह उठे, खाना पिया, किया, नाश्ता किया, काम पे गया, तो आके खा के सो गए। नेटफ्लिक्स ऐड कर दो उसमें, फेसबुक ऐड कर दो, क्या फर्क है हमारे उसमें? वी आर मेंट फॉर ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, एंड दिस बॉडी इज अ व्हीकल। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, दिस बॉडी इज अ व्हीकल टू अचीव इट। इस शरीर के बिना कुछ नहीं है। एक बार शरीर नखरा दिखाना चालू कर दिया ना, आधी जिंदगी आपकी बीत जाएगी हॉस्पिटल में। आज ये डॉक्टर खाने के पहले गोली, खाने के बाद गोली, जितनी रोटी आप नहीं खाते उससे ज्यादा आप गोली खाएंगे दिन में। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ? तो टेक चार्ज। बोलते हैं डिफिकल्ट नहीं है, 4 दिन का बात है, मुंह का स्वाद चेंज हुआ, आपको खाना पसंद ही नहीं आएगा। यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट फूड, बिकॉज यू नो दैट बाय ईटिंग दीज फूड्स जो मैंने बताया, यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग योर लाइफ स्पैन। जीना तो हम सबको है, पर उसके जीने के लिए करना क्या है, सीखो तो सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग लॉन्गर, टैबलेट्स, आई एम कमिंग टू दैट। सी आई हैव लाइक टेलीपैथी इज हैपनिंग, कि मैंने नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं ना, आपको पता चल रहा है। आई विल एक्सटेंड द सेशन टू लेट 15 सिंस काफी कुछ मुझे कवर करना है, सो प्लीज बेयर विथ मी, अदरवाइज यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। मैंने 8 बजे तक प्लान किया था, बट 15 मिनट ज्यादा चलता है। आई कम टू विटामिन सप्लीमेंट्स। एक कॉन्सेप्ट हमें बहुत समझना जरूरी है, एक और कैंसर कैसे होता है, विच इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में जो हो रहा है, क्या होता है, हमें समझना है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं,
हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, एंड हमारे शरीर में कुरुक्षेत्र चल रहा है, जैसे कौरव और पांडव के बीच में था ना, तो आई थिंक पांडव आर द गुड वंस ना, हाँ, तो गुड वंस आर द एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड वंस आर द एंटीऑक्सीडेंट्स एंड द बैड वंस आर फ्री रेडिकल्स। कौरव्स हो गए हमारे फ्री रेडिकल्स। इसका एक बैलेंस भगवान ने मेंटेन करके भेजा है, सबके शरीर में ये होता है, एक बैलेंस है। जब तक बैलेंस सही है ना, तब तक वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके शरीर में नहीं होता ही है। बट जब एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा घट जाती है और फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल को खुला सांड समझ लीजिए, फ्री रेडिकल्स जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारे सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जंग चल रही है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के बीच में, जैसे मैंने आगे बताऊंगा आपको। इट इज इम्बैलेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। उसका कारण क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना है हरप्रीत? वेट, क्या वेट? उसके लिए हमें क्या करना है नाउ टू काउंटर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? हमारे फूड में क्या होना चाहिए? विटामिन ए, सी, ई, नॉट सप्लीमेंट। फूड में विटामिन ए, सी, ई बहुत जरूरी है, बताऊंगा आगे। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, टोबैको छोड़ दीजिए, अवॉइड सप्लीमेंट्स, ईट नेचुरल फूड्स। दिस इज द क्रक्स ऑफ कैंसर। जो मैंने आपको दो समझा दिया ना, सेल्यूलर रीजनरेशन मैकेनिज्म बताया मैंने आपको समझाया अबाउट टू जीन्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, एक्सरसाइज के बाद क्या लेना चाहिए? व्हाट शुड यू टेक आफ्टर एक्सरसाइज? Lemon water. लेमन वाटर। व्हाट डज लेमन वाटर कंटेन? विच विटामिन? C. विटामिन सी होता है उसमें, तो विटामिन सी होता है उसमें। कौन कौन ले रहा है मेरे स्टूडेंट्स? डू यू टेक लेमन वाटर आफ्टर द क्लास? एवरीवन, गुड। यू शुड टेक। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सरसाइज इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी होता है, फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए मैं बोलता हूँ नींबू पानी लो आफ्टर द क्लास। यू कैन टेक अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन ए। मे बी यू कैन हैव गाजर, एंटीऑक्सीडेंट है, काफी है। देर आर मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको लेमन वाटर का इजी होता है, लेमन वाटर इज इजी की हाँ कुछ ठंडा पीने का मन करता है आफ्टर वर्कआउट, इट इज टेस्टी ऑल्सो, विदाउट शुगर। हाँ, बट विदाउट शुगर, हनी, नेक्टर, मेपल सिरप, वॉटेवर। 56 नाम मैंने बता दिए शक्कर के। आप आदत पड़ जाएगी, स्वाद मिल जाएगा आपको असली नींबू का स्वाद क्या होता है। ओके, खट्टा नहीं होता है, टैंगी होता है वो। ओके तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेटिव। सब एक फोटोग्राफ ले लीजिए, अपने छाप लीजिए दिमाग में, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नहीं समझे क्लास में मुझे कल फिर पूछ लीजिएगा, फिर समझा दूंगा, बट बहुत जरूरी समझना। तो मैंने लास्ट में क्या बोला था? पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कैसे अफेक्ट करता है। तो क्या क्या अफेक्ट करता है? प्लास्टिक। तो ये पूरा फूड प्लास्टिक में आता है। उसमें माइक्रो बोलते हैं ना, माइक्रो प्लास्टिक से मेरे को सही वर्ड दिमाग में आ नहीं रहे मेरे अभी। देयर आर समथिंग इन प्लास्टिक ना विच इज अ कार्सिनोजन। जो ऑफिसेज में चाय लगाते हैं, मैं जैसे गुजरात जाता हूँ ना, तो पॉलीथीन के अंदर चाय लेके आएंगे, गर्म चाय। अरे वो गल रहा है, वो प्लास्टिक गल रहा है, वो इट इज लाइक अ कार्सिनोजन है वो। जो चाय को गर्म पॉलीथीन में, प्लास्टिक के कप्स में पीते हैं, या फिर पेपर कप्स में पीते हैं ना, बिस्लरी वाटर। हाँ, हाँ, आई एम लाइक, आई डोंट वांट दिस रेगुलर वाटर, गेट मी मिनरल वाटर। हाँ, रेस्टोरेंट में जाते कितने प्राउडली बोलते हैं, नो, गेट मी मिनरल वाटर, दिखाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से एक्सेंट में, इनके उसको लगना चाहिए कि नहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान आया है ऐसा। तो स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दैट बिस्लरी मिनरल वाटर। और नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनी, बट प्लास्टिक वाली चीजें हमें नहीं लेनी, हमें कार्सिनोजन होता है वो, दैट इज अगेन अ कार्सिनोजन। समझिए ये सब क्या है। ये आगे वाली चीजें आई आई होप आप लोग पसंद नहीं करेंगे, खासकर लेडीज जो हैं, और क्या कार्सिनोजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल बेस्ड सोप्स एंड शैम्पूज। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारे फाउंडेशन क्रीम्स, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, सब केमिकल से भर दिए हैं सबने, खाली उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लिपस्टिक लगाने बंद कर दीजिए, पर चूज अ केमिकल फ्री वर्जन। शैम्पू बंद मत करिए, मैं भी शैम्पू यूज करता हूँ, बट केमिकल फ्री शैम्पू। साबुन भी आते हैं, हर्बल शैम्पूज आते हैं विदाउट एनी केमिकल। जितने अच्छा, कैसे पहचानना है ना हो, मैं कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करूंगा, आई एम नॉट योर सजेस्ट। जितने इंग्रेडिएंट्स उसमें कम है ना, उतना अच्छा। उसमें अगर केमिकल नेम चालू हुए ना, समझ जाइए मतलब कार्सिनोजन है। तो अगर आपके टूथपेस्ट में लिखा हुआ है कि खाली वो आयुर्वेदिक इसका बना हुआ है, सर्टन इसका बना हुआ है नेचुरल कंपाउंड्स का, तो दैट इज सेफ फॉर यू। तो जैसे मैं चॉकलेट भी खाता हूँ, आई डार्क चॉकलेट, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या, दो या तीन ही रहते हैं। वन इज काकाओ, वन इज डेट्स, एंड वन इज सम अदर समथिंग, बस। या दो या तीन चीजें रहती है, नो केमिकल, नथिंग। यू डोंट नीड टू स्टॉप एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस इट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिपस्टिक लगाना बंद कर दीजिए, कोई पहचान में नहीं आएगा फिर। लिपस्टिक लगाना सबने बंद कर दिया। मैं डर जाऊंगा बुरे देख नहीं दिखते हैं भैया। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। तो
ये भी कार्सिनोजेन है, प्लास्टिक है, ये सब जो हम केमिकल बेस्ड, सबको कचरे में डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि यूज करके डालिए, चलो आज लगा लेते हैं यार, एक दिन में क्या होता है। नो, मेरे किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मजाक करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसी मजाक होना चाहिए क्लास में। डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स जो आजकल बच्चों को देते हैं, लगाएगा तो यूल बी कूल। अरे कूल नहीं भैया, तेरे शरीर में ये जो इधर जो होते हैं ना, इधर डिओड्रेंट लगाते हैं, इधर हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, which are the receptors for cancer. Pollution not in our control, but we should try कि हाँ, हम जितना अपने घर को एटलीस्ट प्योर एयर प्यूरिफायर्स आते हैं, इंडोर प्लांट्स आते हैं, तो अपने घर में इंडोर प्लांट्स रखिए आप। देखिए सिंपल सिंपल मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ कि कैंसर से कैसे हम बच सकते हैं। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि यार आज दिल्ली में पोल्यूशन है तो हम दिल्ली छोड़ के हम हिमालय चले गए, वी कैन नॉट डू दैट, बट जो आपके हाथ में उतना तो आप करिए। डोंट गिव अवे योर पावर कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा लीजिए आप, अपने आप ऑक्सीजन की मात्रा घर में बढ़ जाएगी। देयर आर सो मेनी प्लांट्स, व्हाई डोंट यू डू इट? मेंटेन कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा, आपको तो ध्यान रखना नहीं है। हाँ? ये सब सुनने मिलता है मुझे। बीमारी करो, दवाइयां खाओ, डॉक्टर के जाने के लिए समय सबके पास है, एक छोटा इंडोर प्लांट लाने बोल दो तो समय किसी के पास नहीं। वी डोंट वांट टू टेक एक्शन, बोलते हैं ना बदलाव सबको चाहिए, बदलना किसी को नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारा इंसान का आज के, कि वी ऑल वांट चेंज बट यू डोंट वांट टू चेंज। टेक स्मॉल स्टेप्स। मैंने शुरू में क्या बोला, एक दिन में सब नहीं करना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं। अनदर रिस्क फैक्टर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी डेफिशिएंसी। सैडली 100% ऑफ माई स्टूडेंट्स वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। जब मैंने उनको टेस्ट कराने बोला, इतने जिद्दी है फिर भी सप्लीमेंट लेते नहीं, 6 महीने बाद फिर कराते, फिर लेस आता है। अब तो अब कराएंगे सब, आज के बाद मुझे मालूम है, टेस्ट कराएंगे एंड सप्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है बताइए? सबसे बेस्ट क्या है विटामिन डी के लिए? क्या करना चाहिए जो क्लास के बाद हम करते हैं? व्हाट डू वी डू? सन बाथ। धन्यवाद। समय नहीं है मनीष, समय नहीं है। अरे 10 मिनट लेना है, कोई आपको 4 घंटा सन में नहीं बैठना, खराब होता है उल्टा। अच्छा, ज्यादा सनलाइट खराब होता है, सनलाइट बिटवीन 10 and 4 इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, 10 बजे से इंडिया में जो रहते हैं, बिटवीन 10 and 4 सनलाइट इज नॉट गुड फॉर यू। 10 मिनट जाके अपना चेहरा और बॉडी में थोड़ा सन दिखा दो, थोड़ा पीठ में धूप दिखा दो, हाफ पैंट पहन के चले जाओ। नेचुरल विटामिन डी है, बट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, तो आई सजेस्ट ओनली 2 सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए। वन इज B12 एंड विटामिन डी, नथिंग एल्स। वी डोंट नीड अ थर्ड सप्लीमेंट अनलेस यू आर डेफिशिएंट। अगर किसको डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए। डोंट टेक इट कि बाजू वाले ले ले, पड़ोसी ले रहे तो मैंने भी ले लिया। नो, सप्लीमेंट क्या होता है? उसका नाम ही सप्लीमेंट है। इफ यू आर डेफिशिएंट देन यू नीड इट, बट B12 यू डोंट गेट फॉर प्लांट सोर्सेज, एंड विटामिन डी बिकॉज वी डोंट गेट इनफ सन एक्सपोजर, उसके लिए ये 2 सप्लीमेंट जरूरी है। क्या डोसेज होता है अपने डॉक्टर को पूछिए, बेटर होगा। बट विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर, इतना चाहिए आप। तो अगर आपका एन आइडियल शुड बी बिटवीन 40 and 50, 40 और 50 के बीच में होना चाहिए हमारा जो लेवल्स होता है विटामिन डी का। आई डोंट नो द एग्जैक्ट यूनिट्स, बट नॉर्मली तो अगर आपका 30 आ गया, डॉक्टर बोलेगा नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, आइडियल इज बिटवीन 40 and 50। नाउ व्हाट हरप्रीत आस्क्ड मी कि हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं क्या? सी, बॉडी डजंट आइडेंटिफाई सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसमें फाइबर नहीं होता है। सप्लीमेंट्स में सबसे प्रॉब्लम क्या? फाइबर नहीं है। ईट नेचुरल एज फार एज पॉसिबल, बट फॉर सम रीजन आपके शरीर में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, बट टेक फ्रॉम अ प्रिस्क्रिप्शन, नॉट आउट ऑफ चॉइस। हम मन से नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट जरूरी है तो लेना चाहिए। ओके, any questions you can ask me about supplements later on. We can do after Q&A after the class, but I want to quickly cover the main which are there. तो एक फोटोग्राफ इसका ले लीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स बोला मैंने, तो ये हो गए हमारे पांडव, हो गए हमारे जो कुरुक्षेत्र चल रही है ना, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। बनाना, पेयर, लीची, व्हाइट ग्रेप्स। वाह, मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया अभी से। आई लाइक क्रेव फॉर फ्रूट्स नाउ, लाइक एडिक्शन हो गया खाने का, अच्छा एडिक्शन हो गया। प्रून्स, एप्रिकॉट्स, जो भी आपके यहाँ मिलता है विच इज लोकली अवेलेबल, सीजनली अवेलेबल, ले लिया सबने फोटोग्राफ। या आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। फ्यू सुपर फूड्स, कैंसर के लिए सुपर फूड्स कौन सा है? टमाटो सूप। टमाटो ऐसी चीज है जो पकाने के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ओके, तो लाइकोपिन एक है जिससे प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस काफी कम होते हैं। तो मैं टमाटो सूप एज अ पार्ट ऑफ योर वीकली रूटीन, डेली रूटीन। ग्रीन टी, सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट, एनी फॉर्म ऑफ ग्रीन टी इज गुड। ब्रांड आई टेक इज वादम, VAHDAM, इट्स अ गुड ब्रांड। मेरा कोई कमीशन नहीं है, बट या दे आर जेन्युइन, ऑर्गेनिक। लेमन वाटर। फ्रूट सच एज कीवी इज अ सुपर फ्रूट। कीवी डेली खाइए आप, जिसको कैंसर है दिन में 3 कीवी खाइए आप। ऑरेंजेस। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, दिस थिंग जो भी गोभी वगैरह होता है, कैबेज, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक फोटोग्राफ ले सकते हैं आप। दीज आर द सुपर फूड्स अगर आपको कैंसर से बचना है तो। हल्दी वाला दूध मत लीजिएगा, मनीष ने बोला कि अगेन यू आर टेकिंग सैचुरेटेड फैट।
ओके हल्दी मैंने बोला, हल्दी वाला दूध नहीं बोला मैंने। क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझाना पड़ता है, कुछ कुछ मैंने इंटेलिजेंट स्टूडेंट से आपने तो बोला था। तो हमारी मेरी माँ बोली थी कि हल्दी वाला दूध लेके, सॉरी उस समय जानकारी नहीं था इतना, उस समय दूध इतना नहीं पीते थे। पनीर बनता था ओकेजन्स में, कि कोई बर्थडे है तो पनीर बन गया। आजकल तो पनीर के बिना तो बोलते मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। नो वेज उसको, बच्चे आजकल किस शेप में बढ़ रहे हैं आपको ज्यादा पता है। दीज आर अगेन फ्यू एंटी कैंसर फूड्स, मैंने एक फोटोग्राफ मिला था मैंने डाल दिया, यू कैन अगेन टेक अ फोटोग्राफ। बेरीज बहुत अच्छे होते हैं, बेरीज आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी ठंड है तो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मलबेरी, जो भी बेरीज मिलते हैं बेरीज खाने चाहिए हमें। नट्स, फ्यू नट्स, 10 नट्स अ डे गुड इनफ, ज्यादा नहीं खाना चाहिए हमें। गार्लिक, these are again few cancer fighting foods, you can take a photograph if you want, very effective, all are like researched, well researched। बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा है कि एकदम एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिले मुझे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्स्ट कुकिंग मेथड्स। अब हमने सब कुछ सही कर लिया, सब इंप्लीमेंट कर लिया, पर अगर आप खाना गलत तरीके से बना रहे या आप उसको गलत तरीके से गर्म कर रहे हैं तो भी उसमें कार्सिनोजन आ जाता है। तो ये आप ध्यान से सुनिए, दिस अगेन आई लर्न फ्रॉम कॉर्नेल, कहीं मुझे सीखने नहीं मिला कि कुकिंग मेथड से भी कैंसर आता है ये। फर्स्ट इज फ्राइंग और डीप फ्राइंग, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया तेल गर्म करते हैं तो कार्सिनोजन बन जाता है। फ्राइड चीजें खानी है तो फ्राई होने के लिए अभी तैयार हो जाइए शमशान में, सॉरी टू से दैट। ग्रिल्ड, ग्रिल्ड सैंडविच मिठी भाई कॉलेज के बाहर का मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसमें क्या करते हैं, वो ब्रेड को रखते हैं एक चारकोल के अंदर, चारकोल का ग्रिल होता है, उसमें बहुत सारा मक्खन लगाते हैं, बहुत सारा चीज लगाते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब वो कॉम्बिनेशन मिलता है बटर का और ग्रिल का, दैट चारकोल का जो होता है ब्लैक ब्लैक जो आप देखते हैं, वो उससे जो बटर है, जो फैट है उसका, दैट टर्न्स इनटू अ कार्सिनोजन। तो जो ग्रिल्ड चिकन खाना चाहते हैं या ग्रिल्ड पनीर खाते हैं या पनीर टिक्का खाते हैं, समझ जाइए कार्सिनोजन फ्री में मिल रहा है पनीर टिक्का के साथ। तो ग्रिल्ड चीजें बहुत खराब होती है हमारे लिए, ग्रिल्ड चीजें जो चारकोल ग्रिलिंग बोलते हैं, दैट इज द वर्स्ट। चारकोल ग्रिलिंग इज इवन वर्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट इज स्मोकिंग फूड्स, जो स्मोक से बनती है ना चीजें, वो भी खराब होती है। माइक्रोवेव, दिस इज द कल्प्रिट आज के टाइम में, कि चलो यार 30 सेकेंड्स में खाना गर्म, मेहनत नहीं करना पड़ता। मेहनत नहीं करना पड़ता है तो बाद में मेहनत करना भाई डॉक्टर के पीछे भाग भाग के। माइक्रोवेव क्यों खराब होता है, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो खाने के केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर खराब कर रहा है वो। आप सोचिए ना, आपने तो उसके अंदर रखा है, कैसे गर्म हो गया, कितना रेडिएशन जा रहा है उसके अंदर, खाने के अंदर कितना रेडिएशन जा रहा है। एक तो खाना में रीहीट नहीं करना चाहिए, खाना एक बार ठंडा ठंडा ही खा लीजिए, यू शुड नॉट रीहीट फूड। और रीहीट करते भी तो प्लीज 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 डोंट डू इट इन अ माइक्रोवेव, उसको आप डोनेट कर दीजिए आज, या रद्दी में डाल दीजिए माइक्रोवेव। इतना खराब होता है माइक्रोवेविंग, कैंसर सेल्स आपके बॉडी में आते हैं माइक्रोवेविंग से। शरण में मैंने सीखा था ये, आई लर्न फ्रॉम शरण। सो आई एम गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स फॉर यू, योगा इंस्टीट्यूट शरण, यूएस कॉर्नेल का जो मैंने कोर्स किया है, आई एम ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स फॉर यू, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट समझना वाली, हम 5 मिनट लेंगे इसमें, मैंने कई बार कवर किया है। तो मैंने तरीका बता दिया आपको कि हमें कैसे ब्रेक पे पैर रखना है एंड एक्सेलरेटर को बचने से रोकना है। बहुत अच्छी तरीके से हमने बहुत कुछ सीख लिया अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फूड फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, सब सीख लिया ये। बट एक तरीका है जो हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जो अब मॉडर्न नाम दे दिया गया, विच इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो दिस इज नॉट अ डाइट, बट एक सर्टन विंडो होता है जिसमें हमें खाना चाहिए। खाना क्यों खाना चाहिए, बिकॉज अवर हमारी जो बॉडी है इट्स अ हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल मतलब क्या होता है, हमारे अंदर दो सोर्सेज ऑफ फ्यूल है। जैसे गाड़ियां चलती है ना पेट्रोल पे इलेक्ट्रिक पे आजकल, कि बिजली खत्म हो गया तो पेट्रोल पे चलेगी वो, राइट। हमारा शरीर दो चीज पे चलता है, वन इज ग्लूकोज जो हमें खाने से मिल रहा है, एंड सेकेंड इज द स्टोर्ड बॉडी फैट। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं फ्रिज का, फ्रिज का एग्जाम्पल लीजिए, आपका फ्रिज खाने से भरा पड़ा है, तो आपके बाहर से आप नया खाना लाएंगे कि पहले आप फ्रिज वाला खाना खाएंगे, व्हाट विल यू डू, बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। फ्रिज पहले वाला फ्रिज वाला फूड पहले आप सोच पहले आप सोचेंगे कि जो आपके फ्रिज में खाना पड़ा है पहले उसको खपाओ, बाद में नया खरीद के लाएंगे, वरना वो खराब हो जाएगा, राइट। तो वैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 2 लाख से 8 लाख कैलोरी स्टोर्ड है, डिपेंडिंग ऑन कितना आपने एक्यूमुलेट किया। इतनी कैलोरीज है हमारे शरीर में। बट व्हाट वी डू, सुबह उठते ही पहले 6 बजे हमें ड्राई फ्रूट्स खाना है, 8 बजे चाय बिस्किट लेना है, 10 बजे उपमा खाना है, 12 बजे हमें फिर सिंगदाना खाना है, चना खाना है, 2 बजे फिर सैलेड खाना है, फिर 3 बजे रोटी खाना है, 5 बजे स्नैक्स तो होना ही चाहिए, 7 बजे सूप तो होना ही चाहिए, 7 बजे खाना, 9 बजे खाना होना चाहिए, रात को सोने के पहले फिर हल्दी का दूध होना चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग, हम बार बार खाली ग्लूकोज अपने बॉडी में लेते जा रहे हैं, जो फैट स्टोर्स है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आपके फ्रिज में खाना पड़ा है, आप उसको बहुत दिन तक अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा खाना वो? व्हाट विल हैपन टू दैट फूड? सड़ने लगेगा। तो अगर आप अपना बॉडी फैट यूज नहीं करें तो बॉडी फैट क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दैट बॉडी फैट? सड़ने लगेगा। यस, सड़ने लगेगा, which is nothing but yes, please mute yourself everyone. Yeah, तो वो सड़ने लगेगा वो खाना हमारे अंदर। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, which is called as intermittent fasting, जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है। दिस इज द लास्ट स्लाइड, सो आपको मुझे 10 मिनट और झेलना है, डोंट वरी। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? डजंट से व्हाट टू ईट बट व्हेन टू ईट। सो ईट बिटवीन अ स्मॉल विंडो, एक छोटे विंडो में खाना है। यू चूज योर विंडो कि आपको 11 घंटे के विंडो में खाना है। तो सपोज मैंने सुबह अगर ब्रेकफास्ट 10 बजे लिया ना, तो मेरा लास्ट मील हो जाता है 6 बजे। आई ईट इन 8 hour विंडो, एंड शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक मैं कुछ नहीं लेता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यू कैन स्टार्ट विद 12 hour विंडो, स्विच टू 13, 14, 15, 16। आइडियल बेस्ट, इफ यू आस्क मी मनीष, बेस्ट क्या? बेस्ट इज 18 hour फास्टिंग विंडो, सबसे बेस्ट है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, भले आपको 18 अभी भारी लग रहा है, स्टार्ट विद 12, मूव टू 13, 14, 15। जैसे जैसे कंट्रोल आएगा, 18 विल बी अ केक वॉक फॉर यू। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बट डोंट मेक इट अ गोल राइट नाउ। जो नए हैं यहाँ पर, डोंट मेक अ गोल राइट नाउ। इवन इफ यू डू 12, 13 आवर्स, तो क्या होता है? तो व्हेन वी डोंट ईट एनीथिंग फॉर 8 hours ना, हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन आ जाता है। कैसे हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर कम आता है हमेशा? क्यों फास्टिंग ब्लड शुगर कम आता है, लो आता है कंपेयर टू पोस्ट ईटिंग? नहीं खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल डाउन आ जाता है हमारा, राइट? पर बॉडी तो हमारी चलती है जब ग्लूकोज सोर्स, तो किससे चलती है हमारी बॉडी? फिर अगर हमारा ग्लूकोज स्टोर खत्म हो गया है, कौन से स्टोर एक्टिव हो जाते हैं फिर? फैट स्टोर्स। यस, आई हैव अ ब्यूटीफुल ऑडियंस टुडे, फैट स्टोर्स। तो वी आर यूजिंग जो फ्रिज का खाना है ना, हम उसको यूज कर रहे हैं हमारी एनर्जी के लिए। तो डोंट वरी, अगर आप 16 घंटा नहीं खाते, आप मरने वाले नहीं है। आई कैन राइट इन ऑन स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू यू, यू वोंट डाई, बिकॉज यू हैव फैट स्टोर्स विद इन यू, एंड दैट इज अ बेटर सोर्स ऑफ फ्यूल ऑल्सो। अवर बॉडी लव्स कीटोन्स, उसको कीटोन्स बोलते हैं। अवर बॉडी लव्स कीटोन्स, दैट इज अ बेटर सोर्स ऑफ फ्यूल। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ना, योर चांसेस ऑफ गेटिंग फैटी लिवर, योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्रेन हेमरेज विल ऑल्सो कम डाउन अलॉन्ग विद कैंसर, बिकॉज कीटोन ज्यादा स्टोर होते हैं हमारे ब्रेन में एंड हमारे लिवर में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने फायदे, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं एक पूरा 1 घंटे का सेशन लिया हुआ उस पे, डोंट हैव दैट लिबर्टी टुडे। सो यू कैन क्विकली नोट डाउन, आप फोटोग्राफ ले लीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि क्या क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। कैंसर तो कम होता है, ये कैंसर सेल्स तो खत्म होते ही हैं इससे। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एट ऑटोफेजी। ऑटोफेजी वही होता है कि अवर गुड सेल्स आर ईटिंग अवर बैड सेल्स। एक तरह से हमारे अंदर ही सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर 12 to 13 hours ऑफ फास्टिंग। सो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि एकादशी में फास्ट किया करो, कोई बेवकूफ नहीं थे वो कि महीने में 2 बार हमें खाली वाटर फास्ट करना चाहिए। इट इज अ सेल्यूलर रिपेयर प्रोग्राम। तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को एकादशी, वी डू अ 3 day रॉ फास्ट, ऑल माय स्टूडेंट्स डू अ 3 day रॉ फास्ट। मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ? दैट इज नथिंग बट अ सेल्यूलर रिपेयर प्रोग्राम दैट आई एम डूइंग विद यू, जिससे आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू जस्ट नीड सम मोटिवेशन। कोई हैंड होल्डिंग वाला चाहिए हमें लाइफ में, कि हमें लाइफ में कोई हैंड होल्डिंग करके हमें ले जावे। तो मेरी क्लासेस में जो आता है, कितने मोटिवेशन मिलते हैं सबको, कितना दे गेट दिस मोटिवेशन 3 to 4 times a week, and they are charged up, and see, look at people, they are shrinking in size, they are more happy with their lives। किसी का डायबिटीज रिवर्स हो गया, ब्लड प्रेशर रिवर्स हो गया। मेरी मदर कैंसर, तो 18 महीने से कैंसर रिलैप्स नहीं हुआ, विच इज द मोस्ट ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, मोस्ट अग्रेसिव फॉर्म। डॉक्टर्स आर सरप्राइज, बोला मनीष व्हाट यू आर डूइंग विथ हर, जस्ट कंटिन्यू दैट ओनली। तुम करते रहो जो तुम कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग विथ योर मदर। सी, मैं ये बोलता हूँ कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको बीमारी हो भी गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। मेनी थिंग्स यू कैन डू, मेनी थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू रिवर्स योर कंडीशन। मैं तो बोलता हूँ रिवर्स तक होता है ये, जो मेडिकल साइंस ने बोलते हैं व्हाई डू वी गिव अवर एंटायर राइट टू मेडिकल साइंस ओनली? क्या डॉक्टर ही एक भगवान है यहाँ पर? उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है यहाँ पर जो हमें ठीक कर सकता है। आई बिलीव नेचर इज द बेस्ट हीलर। मुझे अगर पूछोगे ना मनीष हु इज द बेस्ट डॉक्टर, मैं बोलूंगा नेचर, बिकॉज एवरीथिंग इन नेचर इज परफेक्ट। लुक एट द ऑर्बिट, सन एक ही जगह पे है, उसके अराउंड ग्रेविटी से कैसे प्लैनेट्स उसके अगेंस्ट घूम रहे, इट इज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट यूनिसन। लुक एट प्लांट्स, लुक एट क्लाउड्स, लुक एट वेदर, अपने आप ठंड के बाद गर्म आते हैं, गर्म के बाद मानसून आते हैं, कैसे आता है? एवरीथिंग इज परफेक्ट इन नेचर, एंड वी टू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, पर हम भूल गए। We have forgotten that we are a part of nature, and we need to live according to the circadian rhythm of nature। कि हमें सूरज के साथ उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठने बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि we should get up at 4 a.m. every day? I get up at between 3 and 4 every day, be it Sunday, be it holiday, be it Republic Day, Independence Day, whatever day।
बिकॉज आई नो दैट आई नीड टू लिव अकॉर्डिंग टू सर्कैडियन रिदम। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह 4 से लेके 8 बजे, 4 से लेके 12 बजे तक, मॉर्निंग 4 AM to 12 PM, इट इज द एलिमिनेशन फेज ऑफ अवर बॉडी। एलिमिनेशन फेज में कुछ भी हमें पका हुआ नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? स्मूदीज लीजिए आप, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड्स खाइए, हैव वेजिटेबल जूसेस। ये सब हमें लेना है 4 से 12 बजे तक। उससे क्या होगा? एलिमिनेशन हमारा अच्छा होगा। जब 12 बजे सूरज हमारे सर के ऊपर होता है ना, सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, दैट टाइम आवर डाइजेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो 12 से 2 के बीच में यू कैन हैव अ कुक्ड मील, जो भी आपको पसंद है खाने में, विदाउट ऑयल, विदाउट एनिमल प्रोडक्ट्स, आप वो खा लीजिए। एंड देन अगेन 6 o'clock हैव समथिंग लाइट, बिकॉज जैसे सूरज ढलता है ना, सूरज जब ढलने लगता है, अगेन हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। ये तो डोंट हैव एनी नॉनवेज एट दैट टाइम, डोंट हैव अ हेवी मील, हैव अ सूप एंड सैलेड फॉर डिनर, हैव अ फ्रूट। थोड़ा कुछ पका हुआ खाना है तो लाइट खा लीजिए, दाल राइस, ब्राउन राइस और समथिंग लाइट खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं नहीं बोलता हूँ मेरे जैसे कंट्रोल आई, मैंने 4 महीने से खाली रॉ फूड पे हूँ। मैं रॉ फूड लाइक 80% 90% रॉ फूड, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। लुक एट माय एनर्जी लेवल्स, क्रिएटिविटी, ऑल दिस आइडियाज कहाँ से आते हैं? पर धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करना है हमें। तो सुबह 4 से लेके 12 बजे तक कौन सा फेज है हमारा? एलिमिनेशन। 12 से लेके 8 बजे तक का कौन सा फेज है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन फेज होता है। एंड रात को 8 से लेके 4 बजे तक कौन सा फेज है? वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हमारी हीलिंग होती है, दैट इज द हीलिंग फेज। हीलिंग फेज में हमारा रिपेयर होता है। तो अगर जो मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, रात को जो बोलते हैं हम 10 बजे काम से कैसे 10 बजे खाते हैं, तो अब हीलिंग फेज में आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो उस समय जब सेल्स आपके रिपेयर होने चाहिए, जब अच्छे सेल्स खराब सेल्स को खाने चाहिए, जब आपका सेल्यूलर रीजनरेशन होना चाहिए, उस समय तो आप खाना खा रहे हो। एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी डाइजेशन में चली जाएगी। तो लेट नाइट डिनर इज अ बिग नो नो। वंस इन अ ब्लू मून इज फाइन, समझ में आता है दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव डिनर एट 6 or 7, बट आइडियल इज 7। मेक अ डेडलाइन के 7 के बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। हैव अ ग्रीन टी, यू कैन हैव अ ग्रीन टी, यू कैन हैव सम, थोड़ा गर्म सूप ले लिया, एक फ्रूट खा लिया, अलग बात है, बट कोशिश करिए 7 बजे के बाद मुझे खाली ग्रीन टी लेना और कुछ नहीं लेना। दैट इज द बेस्ट। मेरा काम है बेस्ट करने का, कि बेस्ट क्या है आपके लिए, मैं आपको बेस्ट बताना चाहता हूँ। तो यू फॉलो दिस पैटर्न ऑफ ईटिंग 4 से 12, जो मैंने आपको 3 प्रहर बताई है। इस हिसाब से आप खाएंगे ना, आपको डाइजेशन आपका बेटर होगा, असिमिलेशन बेटर होगा, हीलिंग होगी आपकी। योर फार्मेसी विल गेट एक्टिवेटेड। सो मेरी बुक रिलीज होने वाली है, थोड़ा बहुत अपना PR भी कर लेता हूँ। सो आई एम राइटिंग 2 books राइट नाउ। एक बुक लिख चुके हैं, बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी। दैट इज अबाउट द डिजीज जो मुझे थी। इट्स कॉल्ड थ्राइविंग विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कि अगर आपको बीमारी है तो भी आप थ्राइव कर सकते हैं। एंड सेकंड बुक इज अबाउट एक्टिवेटिंग योर इनर फार्मेसी, जो को ऑथर मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर उस किताब को लिख रहे हैं। दैट शुड बी रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिसमें हम सारा चीज मेंशन करने वाले हैं। एवरीथिंग वी विल मेंशन इन डिटेल, दैट हाउ कैन यू एक्टिवेट योर इनर फार्मेसी। कई लोग मुझे पूछते हैं, मनीष, हाउ टू कनेक्ट विथ यू? सो अगेन अ बिट ऑफ PR ऑफ मी। बेस्ट वे टू कनेक्ट इज इंस्टाग्राम नाउ। इंस्टाग्राम पे काफी कुछ डालता हूं मैं, तो यू कैन लुक एट दिस स्लाइड वेर आई एक्सप्लेन कि कैसे है। सो आई एम टेकिंग दिस क्लासेस रन करता हूँ मैं 1.5 साल से। हेल्दी बॉडी, बैलेंस्ड माइंड, 3 या 4 बार हम मिलते हैं, हो जाता है 5 बार, कई बार हो जाता है, तो परेशान हो गए मुझसे। देन इंस्टाग्राम इज द बेस्ट, मैंने जो बोला। तो माई पेज नेम इज holistic.abundance, एंड उसमें आप जो लेफ्ट में साइन देख रहे हैं ना, ऊपर टॉप लेफ्ट में जो बच्चा बैठा हुआ पर्वतासन कर रहा है, दैट इज माई लोगो। तो उससे आप मेरी पहचान कर सकते हैं। फेसबुक पे हूँ, पर फेसबुक इतना एक्टिव नहीं है फिलहाल। लिंक्डइन पे मैं हूँ मनीष संघई के नाम से। यू कैन कनेक्ट विथ मी दिस वे। दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, मुझे बोलना है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मेरा क्लास आज शाहरुख खान एंड पे, मैंने बहुत बोल लिया। तो जब तक शाहरुख मेरी क्लास में नहीं आते ना, मुझे मजा नहीं आता। ही इज माई, आई एम अ बिग फैन, शाहरुख फैन। एंड हियर इज अ डायलॉग फ्रॉम ओम शांति ओम, कि द एंड कैसा होना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि द एंड कैसा होना चाहिए हमारी लाइफ का, या हमें कोई भी प्रॉब्लम्स है, होप नहीं खोना है हमें। एक चीज हमें क्या नहीं खोना है? होप नहीं खोना है। क्यों नहीं खोना है वो हमें शाहरुख खान बताएंगे। जस्ट स्टार्टिंग इट नाउ। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील
This is my feeling for my students कि I was a born teacher and I love to teach. And शाहरुख खान के रूप में मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच, बीइंग माय बेस्ट, कि आपने मुझे मेरे ख्वाबों से मिला दिया. आई ऑलवेज वांटेड टू टेक दिस नॉलेज टू द वर्ल्ड व्हिच आई एम डूइंग थ्रू माय क्लासेस, थ्रू द सोशल मीडिया पेजेस. सो थैंक यू वेरी मच. बट अभी एंड कैसा होना चाहिए शाहरुख खान बताएंगे. नाउ लुक एट द एंड. द ब्यूटीफुल एंडिंग है. like the king of the world. और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है. हैप्पीज एंडिंग्स. और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों. पिक्चर अभी बाकी है. So don't get disheartened कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, अगर वो हैप्पी एंडिंग नहीं है then it's not the end. क्या डायलॉग था शाहरुख खान क्लास में? वो डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. यस. सो देयर आर ऑलवेज हैप्पी एंडिंग्स. पर हैप्पी एंडिंग कब आएगी? जब हम अपना कर्म सही करेंगे. हमारी जो व्हाट वी आर मेंट टू बिहेव, जो हमारा दिनचर्या होना चाहिए, अगर हम वैसा दिनचर्या अपना रखेंगे तो आपकी एंडिंग हमेशा वो हैप्पी एंडिंग्स होगी. ओके. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन. एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? We can take question answers now. Otherwise, you can leave. अगर कोई क्वेश्चन है, you can leave now. Sir, coffee. Coffee in small amounts is good, but not milk. Obviously, not milk. In small amount, in fact, coffee is good. In fact, जो कॉफी होते हैं, कॉफी, टी, see, टी is not bad. जो ब्लैक टी भी होती है ना, खराब नहीं होती, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें. कॉफी में भी काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ग्रीन टी इज द बेस्ट. चाय के साथ जो जाता है ना, शक्कर, दूध, वो खराबी करता है वो. ओके. इनफैक्ट ब्लैक टी, न्यू रिसर्च इज कमिंग अप दैट ब्लैक टी इज इनफैक्ट बेटर देन ग्रीन टी. आई नॉट श्योर, दैट्स व्हाई मैंने बोला नहीं. आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई डिडंट से. बट न्यू रिसर्च इज कमिंग अप दैट ब्लैक टी, जो आसाम की दार्जिलिंग टी होती है, ब्लैक टी, नॉट मिल्क वाला टी, that is in fact better, but I'm not sure, that's why I didn't touch on it. Yeah. Okay. Anybody else? Any questions? मनीष भाई, Yeah, मिलन. हाँ मिलन भाई बोलिए. हाँ. आज की डेट में जो मार्केट में अब जो भी फ्रूट बोल रहे हैं या वेजिटेबल बोल रहे हैं, वो भी सब मोस्टली प्रोसेस्ड ही आ रहा है. नहीं, प्रोसेस नहीं आ रहा, केमिकल्स वाले आ रहे, केमिकल्स वाले आ हाँ, रहे. केमिकल्स वाले, मतलब हाँ, Yes. उसका भी बायोलॉजिकल फॉर्मूला चेंज करके नए नए सीड्स बना Yes. के. सीजनल फ्रूट्स पहले क्या थे, कोई भी फ्रूट्स थे वो 3 महीने 4 महीने के सीजन के लिए मिलते थे. आज वो 12 पूरे साल मिलते ही है. और शिमला का एप्पल हो तो आपको कन्याकुमारी में भी मिलेगा. हाउ इज न्यूजीलैंड का पॉसिबल? कीवी. हाँ, हाँ, सी. यस. यस. तो आपका तो सवाल क्या है? वो आपका सवाल क्या है? आप. तो वो खाना केमिकल फॉर्मूले से जो बना हुआ फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, वो अपने लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है? यस. तो मुझे मजा आता है एग्जांपल देने में. ओके. अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि विस्की हेल्दी है कि वाइन? विस्की ज्यादा खराबी करता है कि वाइन ज्यादा खराबी करता है? कौन बताएगा I जिसको don't- मालूम? नो I नो don't know. नो नो कंपैरिजन. आई एम कंपेयरिंग. विस्की ज्यादा खराबी करता है कि वाइन ज्यादा Whiskey. खराबी करता है? Whiskey. Whiskey. विस्की. विस्की. वाइन इज बेटर देन विस्की. चलो ठीक है, क्लियर. नाउ वाइन ज्यादा खराबी करता है कि बियर ज्यादा खराबी करता है? Wine. वाइन. तो सी मिलन भाई, इसका सवाल जवाब मैं ऐसा देना चाहूंगा कि विच इज द बिगर पॉइजन? ओके. प्रेफरेबली मैंने ऑर्गेनिक वर्ड यूज क्यों नहीं किया? अगेन मुझे लोगों को डिसहार्टेंड नहीं करना था. आइडियली वी शुड ईट ऑर्गेनिक फूड्स which is free of pesticides, which is free of chemicals. मिलन भाई, तो हमें ना खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल्स नहीं होता है. फॉर्चुनेटली हम तो बॉम्बे में रहते हैं. बॉम्बे में तो बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं. बट अगर सुनिए, बट आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई कारण से यू कैन नॉट अफोर्ड इट, घर में लाके उसको अच्छे से वॉश करिए. आप जो भी आप सब्जियां लाते हैं उसको थोड़े से गुनगुने पानी में डाल दीजिए विद सॉल्ट. उसको 15-20 मिनट रखिए सब्जी को उसके अंदर सलाइन वाटर में. तो उसमें जो केमिकल्स है ना, एटलीस्ट जो बाहरी केमिकल्स है, निकल जाएंगे. तो सी, इट्स ऑलवेज बेटर देन हैविंग मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट्स, चिप्स. उससे अच्छा तो है कि हम फल, सब्जी, सलाद ये खाएं ना. इट इज अ बेटर ऑफ द टू इविल्स बोलूंगा मैं. अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनिक मिले तो नथिंग लाइक इट. यू शुड हैव ऑर्गेनिक. महंगा नहीं है वो, फ्यूचर में आपका बीमारी बचाएगा, डॉक्टर का पैसे बचाएगा. एक स्टेंटिंग का 10 लाख लगता है आजकल, जो पहले 2 लाख लगता है. एक स्टेंट लगता है उसका 10 लाख लग रहा है. एक कैंसर किसी को हो गया, फुल ट्रीटमेंट कॉस्ट 20 to 25 lakhs.
So don't tell me that healthy food is expensive, apple is expensive, pear is expensive, kiwi is expensive. No. मिलन भाई is very right. You should eat locally grown foods. जितना locally खा सके, seasonal खा सके. Local भी खाना चाहिए, seasonal भी खाना चाहिए. Actually मिलन भाई मेरे दूसरा प्रोग्राम है उसमें कवर करता हूँ मैं पूरा डिटेल्स. But good that you brought up this point कि organic जितना खाएंगे उतना chemicals हमारी बॉडी में कम जाए. Okay मिलन भाई, I hope you answered the Yes, question. yes, Manish bhai. Yes. Thank you attending. अच्छा अटेंड किया आप. एंड आपको बॉडी फैट कम क्यों करना है मैं आपके पीछे लगूंगा. तो ही इज माय फ्रेंड एंड हमारी डेली बातें होती है. तो होपफुली अब मेरी ज्यादा इज्जत करेंगे वो. Yes, Manish bhai, sure. I just stop the recording. Yeah. See, मिलन